So, maybe there's a bit, I think many of you wanted to have a look at the past paper first. So, we'll maybe have a look at the Feb 25 paper first, and then we'll get back to the revision. We get time. Okay. So, let's open the paper. Just a second. I'll also open the same on my end. Just a moment. Just confirming that. Yeah. So let's look at the Feb 25 paper. Yeah. Can we start with the couple of question first? Sure. Let me just open the paper. What question number is on? It is the third question. Third question. Okay. Let's have a look. Just give me a moment. Let me open the question paper. Just give me a second. Yeah. Let me know when you all can see my screen, guys. Is my screen visible to you all? Tell me. Yes, sir. Yeah. Cool. Perfect. Then let's begin with the third question. Then in that case, let's have a look at the question paper. What does it say? Just a moment. I don't have it zipped up. Just a second. Yep. Cool. The third question says what? It says that an investment manager wants to model the joint distribution of returns for two financial assets, A and B. The marginal distributions of the returns are as follows. Asset A follows a normal distribution with mean this and standard deviation this. And asset B follows a T distribution with this degrees of freedom, mean this, and the scale parameter this. Okay. The manager assumes the return exhibits dependency and decides to use a Gaussian copula to model the joint distribution. Okay. The correlation between the returns is rho equals 0.6. Generate 2000 observation of A, B using Gaussian copula and the marginal distribution of A and B. You should set a random number generator 0456 before generating the observations and displaying the first 6 rows in your answer script. Okay. Now tell me, for generating copula, what is the function that we use and uske liye what package do we need, guys? Tell me. क्या हुआ बताओ? What do you need? What function do you need? अच्छा, तो यहाँ पे you will need two libraries, two packages to get installed. ठीक है? First is your mass package and the other one is your copula mass package. ठीक है? So the first one is the mass, the second one is the copula, which I guess I don't have it installed, so just as I'll get it installed as well. And once you get the copula package installed, we'll attach that package as well. Just a second, it's installing dependencies. So once you get that done, what are the two things that you need now? Tell me. अगर अपने को copula बनाना है तो अपने को कैसे करना होगा? We'll have to first give it the information that rho equals 0.6, right? And once we have given that information, we'll use it to generate CDFs of a copula function. Okay? And once we have that, we'll generate our marginal distribution के PDFs. Yes or no? Tell me, guys. That's what we'll do, right? हाँ कि ना? तो अपने को basically क्या करना है? You need the the CDFs in a way of the two distribution. ठीक है? Once you have the CDF of your Gaussian copula distribution, then you can find the marginal distribution as well. Make sense? Yes or no? बताओ. क्या हुआ? Does it make sense to everyone? Chalo, let's see how it can be done. Just a second. So we'll get this copula package installed as well.
ठीक है। सो एक तो उसमें होता है नॉर्मल कॉपुला, जब आप गॉसियन के लिए कर रहे हो, सो एक फंक्शन आपके पास आता है called normal copula. Let's have a look at this function. So what this function basically helps you to do is you give it your parameter, right? आपका parameter क्या है, right? जैसे in this case our parameter is rho equals 0.6. ठीक है। So that is the first information I'll give to R, because उसी को यूज करके बाद में मैं R copula function यूज कर पाऊंगा। ठीक है। R copula function क्या करता है? It basically generates the grand like copula का vector for you। ठीक है। So that is what it returns, like u, जो आपको like it will be always between 0 and 1, right? So it will basically give you the CDF of your copula function, है ना? And that can help you to do what? That can help you to generate then the marginal distributions in using inverse CDFs, right? So how can we get that done? So I'll पहले तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा कि नॉर्मल का कॉपुला के लिए मुझे क्या चाहिए। जब मैंने पहले फंक्शन बोला कि आप नॉर्मल कॉपुला फंक्शन यूज करोगे, सॉरी नॉर्मल कॉपुला, राइट, उसमें क्या दोगे कि आपका पैरामीटर जो है दैट इज 0.6, सो यू पास दैट इंफॉर्मेशन फर्स्ट। वंस यू हैव दैट इंफॉर्मेशन यू यूज द आर कॉपुला फंक्शन। ठीक है। द आर कॉपुला विद अ कैपिटल सी। यहाँ पे यू गिव इट हाउ मेनी सिमुलेशंस यू वांट टू जनरेट, राइट। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है देखते हैं। दे हैव आस्क्ड यू टू जनरेट 20,000 ऑब्जर्वेशंस, राइट। सो अपने 20,000 दे देंगे यहाँ पे, एंड ये जो नॉर्मल कॉपुला वाला क्रिएट किया that would act as a second input. Okay, so this is basically your CDF. तो अपने basically इसको U या any like CDFs are usually represented by the letter U, because I don't know, CS1 में ऐसा एक टॉपिक था रैंडम नंबर सिमुलेशन का, उसमें फर्स्ट यू डिड अ CDF जो 0 और 1 के बीच में हमेशा रहता था, राइट, और उससे अपने निकालते थे अपने पीडीएस निकाल, मतलब एक्स की वैल्यूज निकाल सकते थे बेसिकली, राइट। सो दैट इट्स अ सिमिलर लॉजिक हियर, बट यहाँ पे आर कॉपुला यूज करेंगे अपने सीडीएफ जनरेट करने के लिए, राइट। वन मोर थिंग दैट दे आस्क्ड यू टू डू इज सेट अ सीड ऑफ what, let's look in the question. They've asked you to set a seed of on spot 456, right? So ये कोड अब मैं एक साथ रन करूंगा तो मुझे आर कॉपुला से मेरे जॉइंट सीडीएफ मिल गए। अब मैं मार्जिनल पीडीएफ निकाल लूंगा कैसे? सो इफ यू लुक एट द आउटपुट यू, राइट, नाउ इट नोज दैट यू आर वर्किंग विद टू वेरिएबल्स, राइट, बिकॉज इट्स अ कॉपुला, राइट। अब आपको क्या करना है, एक को आप ए बना लोगे, दूसरे को आप बी बना लोगे, और दोनों के आप मार्जिनल डेंसिटीज निकाल लोगे। यस और नो? डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? बताओ, सबको समझ में आया व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? टेल मी गाइस, हाँ कि ना? सर थोड़ा समझ रहा, थोड़ा ऊपर से जा रहा है एक्चुअली। कौन सा पार्ट ऊपर से चल गया बताओ? अभी एज जैसे आपने जब हम लोग को बोला था कि हम लोग नॉर्मल कॉपुला डिफाइन करेंगे, फिर उसमें हम लोग पैरामीटर डिफाइन करेंगे। सो आई थॉट लाइक यू डिफाइन पैरामीटर एज द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स. So first I thought instead of the correlation, like since it is a normal distribution, I connected it with the normal distribution, and I thought we will put parameters as mu and sigma. Like नहीं, यहाँ पे you are using, आप कॉपुला का पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हो। इट्स नॉट अ नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल कॉपुला इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये गॉसियन कॉपुला है, या राइट। तो ये पहले वहां से, अभी एसेट ए एसेट बी की बात भी नहीं आई है। अब आपने जब यू जनरेट कर लिया है तब एसेट ए एंड एसेट ए बी विल कम इनटू द पिक्चर। ठीक है। तब आप क्या यूज करोगे? अब आप क्यू नॉर्म यूज करोगे, बिकॉज एसेट ए फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स व्हाट। पहले तो आप यू का पहला कॉलम सिलेक्ट करोगे, ऑल रोज फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सो दैट विल बेसिकली गिव यू एसेट ए के सारे इन अ वे द CDF or the use, right? And then you will do what? You will give it the mean and the standard deviation. तो mean and standard deviation क्या दिया हुआ है अपने क्वेश्चन में? 0.05 and 0.1. Now those things will come in. 0.05 and 0.1. तो ये आपका क्या हो गया? एक तरीके से एसेट ए का आपका जो मार्जिनल है वो जनरेट हो गया। ठीक है। सो दीज नंबर्स आर बेसिकली दैट। आपको पहले 6 नंबर दिखाने थे, पूरा नहीं एंटर करोगे, केवल हेड ऑफ एसेट ए करोगे।
ठीक है. Similar thing will happen with asset B as well. What you will do here is you will use the second column. You'll use QT instead of Q norm because it follows a T distribution. It follows something I think with 4 degrees of freedom. और वहां पे एक और चीज दिया हुआ है कि इट हैज अ मीन ऑफ दिस एंड स्केल ऑफ दिस. ठीक है. तो अपने को इस मीन एंड स्केल पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करना है. स्केल पैरामीटर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, मीन पैरामीटर हमेशा ऐड होता है. ठीक है. सो विल मल्टीप्लाई विद दिस विद 0.15, राइट, and will add 0.03 to this. So they're shifting axis and थोड़ा सा उसका scale को भी change कर रहे हो when it comes to asset B when you are doing this multiplication and additions. And then we look at the first 6 values as well. समझ में आया बताओ सबको? Any questions? Just give me one moment guys, I'm getting a call. 1 minute देना मुझे, ठीक है? Sorry guys, does it make sense to everyone? Sir, I have 2 doubts over here. हाँ. तो सर सबसे पहले जो हम लोग आर पॉपुलर कर रहे हैं, so we are generating 20,000 values using the function which we previously defined. So that is Right. just 20,000 random values which has a correlation of 0.6. Right. Yeah. And then, Not just 2,000 random values, yeah, 20,000 random values that had correlation of 0.6, but these represent what do you call? एक तरीके से, how should I put it? These represent like copula functions for 2 variables जिनके correlation 0.6 होते हैं, ऐसा. okay, ठीक है. okay, Just not got it. 20,000 values that have a like that of Got it. 0.6. Yeah. So and then the next one. So when like you know, इसमें when we have to generate the when we are generating the marginal distribution for normal or for t value, then why are we using Q norm? Like Q norm gives us, like if you're given a percentile, like if you had to Right. calculate it at 10% or any percentile, then it gives Right. you that output. Exactly. So it basically acts like an inverse CDF, है ना? कि आपको Yeah. CDF पता है, आपको XC वैल्यू निकालनी है, मार्जिनल वैल्यू निकालनी है, right? Yeah. So when you are doing the copula function होता है, if you remember, it takes a less than equal to of both the variables, right? Yes, sir. Right? तो एक तरीके से मुझे यहाँ पे जो मिला वो दोनों वेरिएबल्स का U में CDF मिला, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ. हाँ सर. राइट. तो अगर मैं Q यूज करूंगा तो मुझे उसका एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा ना, क्योंकि अब मैं इनवर्स CDF ले रहा हूँ. Got it. And so last doubt, sorry. हाँ. सर ये मेरे को टी फंक्शन नहीं समझा. हम लोग क्यूटी जो कर रहे हैं, तो फर्स्ट मैंने इसमें भी देखा स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन में. राइट.
तो हम लोग Right. फर्स्ट हम लोग का डेटा दे रहे हैं, फिर हाँ. हम लोग क्या बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 4 दिया है, 4 दे रहे हैं, Right. हाँ. फिर हम लोग वो जो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन द वे वी एडजस्टिंग, बिकॉज ये लाइक ये मेरे को फिर क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन है, यूजुअली द मीन इज ऑलवेज 0. ठीक या है. ओके. एंड अगर अपने को स्केल एंड शेप को चेंज करना है, देन व्हाट वील हैव टू डू इज विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. जैसे एक तरीके से समझ लो नॉर्मल और स्टैंडर्ड नॉर्मल में होता है ना. अगर हाँ एक तरीका ये था कि इसको क्यू नॉर्म 0,1 ही रखते, इसको स्टैंडर्ड डिविएशन से मल्टीप्लाई करके मीन ऐड करते हैं, होता है ना वो. इफ हाँ x bar follows normal mu comma sigma square, then x bar minus mu divided by sigma follows normal 0,1, है ना. यस सर सिमिलर लॉजिक टी डिस्ट्रीब्यूशन में भी है. ठीक है. तो आप वही कर रहे हो, स्टैंडर्ड डिविएशन या स्केल पैरामीटर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो. ठीक है. और ऐड कर रहे हो विद द मीन. फिर नहीं, मैंने एक्चुअली गलती से जैसे हम लोग ओके गॉट इट. ठीक है. Cool. चलो, now that you have this, what you need to do, you will have to plot the scatter plot of the simulated returns. चलो, let's try to plot it out. Plotting is easy. I can use directly the plot function, right? So plot of asset A comma asset B will give you a graph that looks like this, right? सबका ऐसा एक सिमिलर ग्राफ आ रहा है, हाँ कि ना. क्या करना पड़ेगा इसमें और अपने को थोड़ा सा और इसको सुंदर बनाने के लिए, मे बी एक्स लैब वाई लैब्स आर इम्पोर्टेंट. रिटर्न्स लिख दो. ठीक है. एंड एक मेन में स्कैटर प्लॉट लिख दो. ठीक है. दैट शुड बी इनफ. द नेक्स्ट वन इज व्हाट another investment manager suggested using a student's T copula with 4 degrees of freedom and rho equals 0.6. मतलब क्या हुआ यहाँ पे? They are now saying कि आप जो कॉपुला पहले गॉसियन नॉर्मल बना गॉसियन विथ गॉसियन कॉपुला बना रहे थे विथ कोरिलेशन ऑफ 0.6, उसकी जगह आप कौन सा कॉपुला यूज करो? टी कॉपुला यूज करो. ठीक है. तो क्या कह रहे हैं? जनरेट 20,000 ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए बी यूजिंग स्टूडेंट्स टी कॉपुला and the marginal distribution of A and B. You should set a random number scenario and beforehand plot the scatter plots and simulated returns in part 3. तो वही जो 1 and 2 में किया वही यहाँ भी करना है. The only change being हमने यहाँ पे नॉर्मल कॉपुला यूज किया है ना, अपने को कौन सा यूज करना है? टी कॉपुला यूज करना है. ठीक है. सो व्हाट आई गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कॉपी ऑल दीज थिंग्स आउट. राइट. अब देखना कि चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं. राइट. सो दिस इज इन पार्ट 3. तो मैं क्या यूज करूंगा? टी कॉपुला बनाऊंगा. ठीक है. अब टी कॉपुला में एक पैरामीटर तो आपका वही रहता है कि आप पैरामी इक्वल्स 0.6 दोगे, बट एक और चीज यहाँ पे आपका आ गया है. वन थिंग दैट यू नीड टू गिव इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ठीक है. क्योंकि गॉसियन कॉपुला में तो आपको पता है स्टैंडर्ड नॉर्मल एक तरीके से 0, 1 है. राइट. बट व्हेन इट कम्स टू टी यू नीड टू गिव द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एज 4. राइट. एक बार आपने वो दे दिया, फिर आप यू टी जब बनाओगे यू यूज व्हाट? आर कॉपुला तो यूज करोगे. 20,000 भी रहेगा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब आपका टी कॉपुला आ जाएगा. राइट. मेक सेंस? यस और नो? यहाँ तक सबको समझ में आया? इसमें किसी को कोई भी दिक्कत? वेरी सिमिलर टू द लास्ट पार्ट. राइट. नाउ once you have that as well, all you need to do is you need to like change this to ut and ut here as well, क्योंकि everything else remains the same as far as I can look at the question. Everything else remains the same. ठीक है. और कुछ नहीं चेंज है. उन्होंने एसेट ए एंड एसेट बी के assumptions आपको चेंज करने को नहीं कहे. राइट. एंड आई मे बी कॉल इट एसेट ए टी एंड एसेट बी टी. राइट. एंड changing these should help me to generate the desired results. ठीक है. आई थिंक यूटी हाँ जनरेट हो गया था, बीटी भी हो गया. एवरीथिंग इज डन नाउ. ऑल आई नीड टू डू फॉर पार्ट 4 is plot asset returns. ठीक है. So this is A with T distribution and this is B with T distribution. This is part 4. Plotting this out, you will get something that looks like this. ठीक है. Make sense guys? Any questions now? बहुत different नहीं था, very similar, right? The thing that changed was Gaussian copula की जगह T copula use कर रहे हैं, right? Now they are saying what? Also on a single graph, line graphs of the estimated conditional means of B, given that A is greater than X against X for values of X at intervals of 0.1 from minus 0.3 to 0.3 inclusive,
for each of the two generated copulas. You should use separate colors to identify each of the two line graphs and set the y-axis range from 0 to 1. ठीक है? Now they have tried to write a lot of things within the same thing and that has made this a lot complicated than it is. ठीक है? देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझो, try to figure out what is going to be there on the y-axis, what is there to be going to be there on the x-axis. X-axis seems easier, so let's start from there. Against something लिखा हुआ है, तो against के बाद जो भी लिखा हुआ है वो अपना x-axis हुआ. क्या है? Against x for values of x at intervals of 0.1 from minus 0.3 to 0.3 inclusive. मतलब minus 0.3 से 0.3 के बीच में रहेगा, at steps of 0.1 रहेगा. ठीक है? अपने को पता है कौन सा फंक्शन यूज करना है इसके लिए, बताओ. x जनरेट करने के लिए what function do we use? Sequence, right? Yes, sequence. So minus 0.3 to 0.3 at steps of 0.1. तो मेरे पास अपना x आ गया. ठीक है? अब देखो, प्लॉट ऑफ x, y होगा, लाइंस ऑफ x, y होगा. ये क्लियर है? क्यों? क्योंकि दो लाइन ग्राफ बनाना है. क्या बनाना है अभी तक मुझे भी नहीं समझ में आया. जब एक और बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझेंगे. ठीक है? बट क्या करना है? दो लाइन ग्राफ्स बनाने हैं. एक बार प्लॉट ऑफ x, कुछ होगा, एक बार लाइंस ऑफ x, कुछ होगा. प्लॉट में ylim इक्वल्स c0,1 कर देंगे, कलर दोनों में डिफरेंट दे देंगे. ठीक है? बट अपने को प्लॉट क्या करना है वापस समझते हैं. एक बार पहले वाला कॉपीला यूज करना है गॉसियन वाला, दूसरी बार टी वाला कॉपीला यूज करना है. इतना भी समझ में आ गया. बट क्या करना है ये समझने की कोशिश करते हैं. कंडीशनल मीन ऑफ बी गिवन दैट ए ग्रेटर देन एक्स, और एक्स की वैल्यू हमने समझ लिया. तो कंडीशनल मीन ऑफ बी क्या होता है बताओ तो. व्हाट इज कंडीशनल मीन ऑफ बी? एक्सपेक्टेशन ऑफ y given, right? Expectation of your y given capital X is क्या y given a greater than x. ठीक है? In fact, expectation of b given a greater than x, right? Yes or no? यही हुआ ना? बताओ, अपने को यही कैलकुलेट करना है ना? Tell me guys, yes or no? ये सबको क्लियर है? तो मुझे क्या करना है? मुझे वो सारे सिनेरियोज लेने हैं एक्स, बी और ए के पेयर में जहां पे ए एक्स से ज्यादा है, राइट? और फिर उन्हीं पेयर्स के लिए मुझे क्या करना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ बी निकालना है. ठीक है? सो देयर बी सम सॉर्ट ऑफ इंडेक्सिंग जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. कैसे करेंगे? अब मुझे कितनी वैल्यूज के लिए करना है? हर वैल्यू के लिए करना है एक्स में. ठीक है? तो सबसे पहले तो देखते हैं कितनी वैल्यूज है अपने एक्स में. लेंथ ऑफ एक्स करके देख लेते हैं. आई हैव से 7 values. So in for I in 1:n, right? What am I going to do? Every point in time, I am going to take a mean of what? Mean of B. ठीक है? कहां पे स्टोर्ड है B के? एसेट B में स्टोर्ड है. ठीक है? क्या सारे का लेना है? नहीं. जहां पे एसेट A is greater than, अब ग्रेटर देन की क्या है? ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन x चाहिए मुझे. सो ग्रेटर देन x, बट क्या सारे x? नहीं, ये वाले में केवल पहला वाला x. ठीक है? तो ऐसे करके हर लूप में मैं हर x को कंसिडर कर लूंगा. ठीक है? और उससे क्या निकालूंगा फिर? जिन एक्सेस उन उस पर्टिकुलर जो एज उस पर्टिकुलर एक्स से ग्रेटर देन है उसके इंडेक्सेस, उनको एसेट बी में इंडेक्स कर ले रहा हूं. तो मुझे वो एसेट बी वाले रिटर्न्स मिल जा रहे हैं जहां पे एसेट ए का रिटर्न उस एक्स से ज्यादा है, और फिर उसका मैं मीन निकाल ले रहा हूं. ये कब क्या है? ये गॉसियन के लिए है. ठीक है? सो दिस बिकम्स माय गॉसियन का मीन. तो बस ये वाला पार्ट, ये जो मीन वाला जो आपने फंक्शन के अंदर लिखा है, ये वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? मतलब ऐसे मैं समझी कि व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. हाँ, कि बट जो हम लोग ने द वे वी रोट द फंक्शन वो थोड़ा समझने में डिफिकल्टी हो रही है मुझे. ये समझ में आया? एसेट एक्स ए ग्रेटर देन एक्स ऑफ आई, ये क्यों किया हमने? क्योंकि हम चाहते हैं कि ए ग्रेटर देन एक्स हो, राइट? यस. एक्स ऑफ आई इसलिए किया क्योंकि मुझे हर लूप में एक डिफरेंट एक्स चाहिए. ठीक है? yes. फिर क्या किया मैंने? एसेट ऑफ बी से इंडेक्स किया क्योंकि मुझे अब वही बीस चाहिए, करेक्ट? राइट? जहां पे एसेट ए की रिटर्न उस एक्स से ज्यादा है. ओके? और फिर मैं उनका मीन निकाल रहा हूं, राइट? एंड फाइनली मैं जीएम के ith एलिमेंट में स्टोर करूंगा. जीएम आई विल मेक वेक्टर जहां पे 0 7 बार एक बार रिपीट हो रहा है. जैसे क्वेश्चन के लिए किया वैसे टी मीन भी निकालूंगा, where again repeat of 0,7, right? And I'll do the same thing for GT as well, right?
इन दिस केस एसेट BT एंड एसेट AT यूज होगा। हाँ बताओ। इधर मैं सच बोलूं लॉजिकली मैं किधर रॉन्ग जा रही हूँ ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हम लोग ने जो हम लोग ने बनाया प्लॉट, तो अगर हम लोग कोई भी एक अज्यूम करते हैं, गॉसियन हाँ सपोज पहले अज्यूम करते हैं, हाँ तो हम लोग का जो एसेट ए है वो हम लोग ने अलग निकाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, और एसेट बी हम लोग ने अलग निकाला पी डिस्ट्रीब्यूशन से। राइट। तो अब हम लोग पहले हम लोग एसेट ए ग्रेटर देन एक्स कर रहे वो समझा, बट जब हम लोग उसको इंडेक्स कर रहे हैं एसेट बी से, तो व्हाट इज दैट एग्जैक्टली डूइंग, दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड तो एक्चुअली। अपने को देखो वही सारे बीज लेने हैं जहाँ पे A ग्रेटर देन X है, ये मानते हो? हाँ सर। ठीक है। और ये भी मानते हो कि ये जो एसेट A एंड B's है ये एक तरीके से पेयर्ड डेटा है ना? ठीक है। ये पहला वाला A और दूसरा पहला वाला B एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट? यस दूसरा वाला A और दूसरा वाला B एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट? यस है ना? तो फॉर एग्जाम्पल ये 6 ही वैल्यूज थी, मैं अब ये निकाल रहा हूँ A में कौन कौन से हैं जो पॉइंट जो 0 से ग्रेटर देन है। ठीक है। पहला, दूसरा, ये सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, करेक्ट? यस सर। राइट। तो मैं वही सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वही सिनेरियोज हुए मेरे बी के, जहां पे A इज ग्रेटर देन 0, A इज ग्रेटर देन माई X। हाँ कि ना? हाँ सर। तो मैं उनका मीन लूंगा, इसका 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 और इसका, राइट? Okay, so it is taking only those rows where A is greater than B, and for those rows we are taking B का value and then we are taking mean of that. राइट। एंड A is not greater than B, A is greater than X। Sorry. That's ठीक my है। bad. A is greater हाँ than X. Okay, got it. ठीक है। सो नाउ वी हैव डन दैट, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, प्लॉट इट आउट। ठीक है। अगेंस्ट व्हाट? X। पहले गॉसियन वाला ले लेते हैं। देखो देखो YLM अपने को सबसे पहले तो C इक्वल 0,1 करना है सो दैट इट रीचेज 1। लाइन ग्राफ करना है, उन्होंने कहा कि लाइन ग्राफ बनाओ। ठीक है। तो लाइन ग्राफ बन गया। कलर दोनों को डिफरेंट दे देंगे, तो इसको कलर रेड दे दिया। ठीक है। जैसे प्लॉट किया वैसे ही लाइंस भी करना है, this time with TM. YLM does not matter, type equals L does not matter, we are using the lines function. The only thing that we are going to change is the color to say blue. Okay, so you've got your two line graphs. Either you draw a legend, or after pasting the graph you write about how one is like क्या बोलते हैं Gaussian and the other is student's T. ठीक है? Clear है? Any questions? So 1 minute, No. just can we copy the code? हाँ, sure. You want me to copy it in the chat box? No, sir. It's almost done. I'm just copying it. Cool. सर मुझे डाउट है कि जो हमने ऊपर जीएम और टीएम के फंक्शंस रेपिटेशन वाले लिखे उसमें मतलब 0 को 7 टाइम्स रिपीट क्यों करवाया? Just to create a dummy vector. तो we can just write numeric 0 as well, right? Numeric 0, exactly. Numeric 0, NA कुछ भी लिख सकते हो। Okay, सर। ठीक है। हाँ, मतलब एक ब्लैंक वेक्टर क्रिएट करना है जिसमें अपने को मतलब बेसिकली मतलब 7 पोजीशंस नहीं भी रखो तो एक वेक्टर रखना है, सो दैट ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का एरर ना है। ठीक है। यस। चलो अब ग्राफ पे देखो, देखते हैं क्या मतलब है इसका। बताओ क्या लग रहा है? बताओ। बताओ what do you notice in this graph? अच्छा एक चीज नोटिस करो कि दोनों इंक्रीजिंग है। अच्छा ये दिखाता क्या है, एक बात बताओ। दे बेसिकली शो यू हाउ योर एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ बी इज इंक्रीजिंग एज ए इज इंक्रीजिंग एज वेल। ठीक है। तो आपका एसेट बी पे रिटर्न्स कैसे बढ़ रहा है एज योर एसेट ए का रिटर्न्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो आपका क्या है यहाँ पे, ऑलमोस्ट इट्स द सेम, राइट? चाहे आप गॉसियन कॉपुला में हो या टी कॉपुला में, राइट? एंड दोनों जगह आपका कंडीशनल मीन फॉर बी इज इंक्रीजिंग।
क्यों इंक्रीज कर रहा है भाई? जैसे ए इंक्रीज कर रहा है वैसे बी भी क्यों इंक्रीज कर रहा है? बताओ तो। पॉजिटिव कोरिलेशन। एग्जैक्टली, बिकॉज वी हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन जो 0.6 था उसकी वजह से वी आर सीइंग दैट इंक्रीज इन बी एज वेल एज इंक्रीज इन एक्स। ठीक है, देखो लोअर वैल्यूज में up until say x equals 0.1 it's completely minus 0.1 it's completely overlapping. minus 0.1 से 0.15 के रीजन में आई वुड से या 0.1 के रीजन में आई वुड से कि कभी रेड ऊपर है, कभी ब्लू नीचे है, कभी ब्लू नीचे है, कभी रेड ऊपर है, राइट? सो देयर इज नॉट अ क्लियर order, right? He Gaussian is greater than T or T is greater than Gaussian, right? But once and it is in the range of what? Range mean of B is around 0 से 0.25 के बीच में है, right? या 0.2 के बीच में है, right? Once that limit crosses, एकदम आप पॉजिटिव टेल की तरफ जा रहे हो, राइट? अपर टेल की तरफ जा रहे हो, तो आपको क्या दिख रहा है? योर the blue line in my case is the T distribution is always above the Gaussian distribution. कोई इसके लिए कोई रीजनिंग दे सकता है क्या? Anyone? That why would it be higher in the positive tail as compared to the Gaussian distribution, the T distribution? Anyone? So I'm not really sure on this, but I can give it a try. Like, Go ahead. so because Gaussian follows normal distribution, whereas T distribution is a positively skewed distribution. देखो, योर लॉजिक रीजनिंग इज राइट, बट उससे कॉपुला में क्या फर्क आता है? उससे कॉपुला में ये फर्क आता है कि जब आप टी कॉपुला बनाते हो तो जो अपर टेल है, जो पॉजिटिव टेल है, उसमें टेल डिपेंडेंस होता है, ठीक है? एंड गॉसियन में देयर इज जीरो टेल डिपेंडेंस, राइट? एंड दैट इज व्हाई योर टी कॉपुला will have higher values when it comes to the positive tail of the distribution. ठीक है? Does that make sense to everyone? Yes, sir. Yeah, cool. Chalo, let's look at the next question now. Sorry. Sir, just 1 second. Sorry to interrupt. Maybe. Sir, like, will you be taking any doubts after this class? Like, actually, I've already solved the first 2 questions. So I thought I'll rejoin once the paper is over. Like, No, I don't think we'll have time to take doubts. Kind of today, maybe next week, abhi we'll try to get done with the paper as much as possible. okay, ठीक है? sir. Cool. देखते हैं. I don't think there would be time though for doubts क्योंकि it's almost what 2:47 now, right? Let's look at the second question क्योंकि I just have one doubt. Actually, मेरा प्लॉट नहीं हो रहा, उसमें एरर आ रहा है कि x and y लेंथ्स डिफर. x and y लैंडस्केप डिफर हो रहे हैं दोनों लेंथ. ओके, आप क्या प्लॉट कर रहे हो? एक बार कोड भेजोगे? यस सर, मैं भेज. हाँ. Okay, x equals looks good. n लेंथ है, x एक्सपेक्टेशन ऑफ b, ठीक है. gm न्यूमेरिक बना दिया, i in 1:n कर दिया, ठीक है. gm निकाला. देखो gm क्या आपने ith एलिमेंट में स्टोर नहीं किया. gm of i tm of i अपने को करना है ना, जब भी लूप करते हैं वैसे करते हैं ना, तो इसलिए वो ढंग से स्टोर नहीं हुआ है. दैट्स व्हाई यू डिडंट गेट एन इक्वल लेंथ वेक्टर. ओके सर. ठीक है, cool. चलो, अपने उल्टा शुरू किए तो क्वेश्चन 2 पे ही आ जाते हैं. इसके बाद क्या लिखा हुआ है? यू बीन प्रोवाइडेड विद डेटा सेट mall.customers.csv which contains information about 200 customers who have visited a mall in a particular day. Following data was collected derived from the information given by customers: age, last birthday, gender of the passenger, male or female, income, monthly income in thousands, spend score. This column has been derived basis various questions depending on the spending pattern of the customer. The score is on a scale of 1 to 100. Note the data set and summarize the key statistics and comment. Chalo, let me quickly unzip the file and then we can start commenting on it. Ek second. To CS2B September 25, February 25. Yeah. Chalo, let's import the data frame now. Yeah. Just a second.
let's import a data set, guys. Mall customers. I'll just import it in a data frame called data. Heading equals yes. Nothing else seems to be needed to change. Looks good. Once I've done that, summary of the data निकाल लो. They wanted key statistics, right? तो आपको जैसे मिल गया कि क्लास मतलब कस्टमर तो ठीक है, एज आपका ये है, इनकम ये है, स्पेंड स्कोर ये है, स्पेंड स्कोर गोइंग फ्रॉम 1 to 99 मींस सम स्पेंड स्कोर ये है. तो लाइक स्पेंड स्कोर के ऊपर आप अच्छे से लाइक कमेंट कर सकते हो, राइट? बिकॉज दैट इज द मेन थिंग दैट विल बी स्टडिंग इन अ वे इन दिस क्वेश्चन, राइट? और क्या आप बोल सकते हो कि ये डेटा लाइक उन लोगों के एज के लिए जो 18 से 70 के बीच में है, राइट? मीन एज उनका 38 है, इनकम 15 से 37 के बीच में है, राइट? So you can like write those things with the mean median thoda, right? Then they're saying what? Create a data set containing columns age, income, spend score for clustering these customers into various clusters and print the head of the new data set named mall customers 1. ठीक है? तो अपने को क्या करना है? सबसे पहले तो एक नया डेटा सेट बनाना है mall customers 1 and just age, income and spend score उसमें include करना है और कुछ नहीं, ठीक है? So let's see what columns are there in a, sorry, I copied the name of the data frame और yes अब हो गया. चलो डेटा में अपने को जो करना है वो कौन से कॉलम्स है ये देखते हैं. एज, इनकम एंड स्पेंड्स को, सो दीज आर कॉलम्स 3 to 5, राइट? सो आई विल इंक्लूड ऑल रोज एंड कॉलम्स 3 to 5, राइट? एंड ये कहाँ पे आएगा? मॉल कस्टमर्स 1 में आएगा फ्रॉम द डेटा फ्रेम डेटा, राइट? वंस आई हैव दैट यू कैन चेक कि अपने पास केवल ये 3 आ गए हैं, राइट? एज, इनकम एंड स्पेंड स्कोर. Then they're saying assign first 50 rows as cluster A, next 50 rows as cluster B, and so on with last 50 rows and cluster D and print the data set. ठीक है? तो आपको क्या करना है? आपको पहले A चाहिए, फिर B चाहिए, फिर C चाहिए, फिर D चाहिए. 50, 50, 50, 50, right? तो कैसे कर सकते हो? You can simply create a new vector जहाँ पे आप अपने cluster names दे सकते हो, right? So cluster names, right? क्या होगा? Repeat of A, B, C, sorry, I need to give them within ये क्योंकि ये characters है, right? And finally D and each equals 50. देखो rep of that comma जब करोगे this comma 50 कर दोगे, ठीक है? A B C D comma 50 तो A B C D A B C D A B C D A B C D ऐसे करके 50 बार आएगा. जब each 50 करोगे तो एक 50 बार A 50 times, B 50 times, C 50 times, D 50 times आ जाएगा, राइट? तो देख लो ऐसा अपने पास एक वेक्टर बन गया, राइट? नाउ ऑल वी नीड टू डू इज append that as a new column to our data frame, right? So mall customers $1 say cluster names, right, equals cluster names, right? So ये करने के बाद आप देखो you have a new data same data frame you have a new column. First 50 rows में A आ गया, फिर 50 rows में B, फिर 50 rows में C and on till the end of the data frame, right? एक बार ये कर लिया, फिर क्या कहा है आपको? print the data set. We have done that. Determine the coordinates of the center for all the clusters and all the variables. ठीक है? तो आपको क्या करना है? आपको coordinates निकालने हैं किसके? हर cluster के हर वेरिएबल के, राइट? सो फॉर एग्जांपल जब आपका क्लस्टर ए की बात हो रही है, राइट, यू नीड टू फाइंड आउट द मीन ऑफ एज, मीन ऑफ इनकम, मीन ऑफ स्पेंड स्कोर. सिमिलरली मीन ऑफ एज, मीन ऑफ इनकम, स्पेंड स्कोर फॉर बी सी डी. ठीक है? तो आपको यही काम करना है. आप तो उससे क्या बनेगा? आपके सारे क्लस्टर्स के सेंटर्स मिल जाएंगे. ठीक है? सेंटर क्या होता है? एक तरीके से x1 बार, x2 बार, x3 बार, x4 बार, राइट? अगर 4 वेरिएबल का वहां 3 ही वेरिएबल का. सो आई एम बेसिकली फाइंडिंग द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द क्लस्टर्स. ये सबको क्लियर है? बताओ इसमें किसी को कोई भी दिक्कत? यस और नो? यस और नो गाइस, दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यस. या तो कैसे निकालोगे? इज देयर एन इजी वे ऑफ डूइंग दिस इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू एवरीथिंग? कैन आई डू इट इन अ इजी वे? देखो देयर इज अ वेरी क्रूड वे कि मैं मतलब बार बार इंडेक्सिंग करूं और करते जाओ, बट इज इट अ गुड वे? आई डोंट थिंक सो. लेट्स थिंक ऑफ सम वे. ठीक है? चलो क्लस्टर नेम्स मेरे ऑलरेडी फॉर एग्जांपल यूनिक क्लस्टर नेम्स में स्टोर करता हूँ. लेट्स ट्राई अ न्यू वे, राइट? तो इसमें क्या है मेरे पास? सी ऑफ ए, बी, सी
and D है, sorry, A, B, C and D है, right? Now these are 4 names. एक बार मैं लूप बनाने की कोशिश करता हूँ, i in 1:4. हर बार मैं क्या निकालूंगा, क्लस्टर का नाम निकालूंगा और मैं चारों का फिर मीन निकालूंगा. क्या? मीन ऑफ व्हाट? मीन ऑफ क्या क्या कॉलम के नाम में दिखते हैं, एज, इनकम एंड स्पेंड स्कोर, राइट? सो मीन ऑफ व्हाट? माय मॉल कस्टमर्स $1 एज, वेर व्हाट? क्या यहाँ पे मैं डालूंगा, जहां पे मॉल कस्टमर्स $1 क्लस्टर नेम्स इज इक्वल्स अनक्लस्टर्ड का पहला वाला, राइट? ith एलिमेंट, राइट? अब ये चीज मुझे किसके साथ करना है? एज के साथ भी करना है, इनकम के साथ भी करना है, स्पेंड स्कोर का के साथ भी करना है, राइट? सो आई एम जस्ट रिप्लेसिंग दिस विथ द 3 वेक्टर नेम्स, राइट? एंड ऑल आई नीड टू डू इज रन थ्रू दिस कोड. अब प्रॉब्लम क्या है, जब लूप के अंदर है वो प्रिंट नहीं करता है, सो आई हैव टू राइट अ प्रिंट स्टेटमेंट हियर और एल्स इट वोंट प्रिंट इट आउट. इट वोंट जस्ट मतलब नॉट स्टोर इट एज वेल, बट मतलब आपको आउटपुट में नहीं दिखेगा. सो वंस आई डू दैट, अब आपको मिल गया ये ए बी, ये आपके क्लस्टर ए के 3 मीन्स है शुरू वाले, ठीक है? शुरू वाले 3, फिर आपके क्लस्टर बी के है, फिर आपके क्लस्टर सी के आ गए, फिर आपके क्लस्टर डी के आ गए. नाउ यू माइट वांट टू स्टोर इट एज वेल, ठीक है? क्योंकि स्टोर करने से आप उसको कभी भी रेफर कर सकते हो. सो हाउ डू आई स्टोर इट, ठीक है? मुझे वेरिएबल नेम्स भी वो बनाने होंगे, राइट? व्हाट यू कॉल, वेरिएबल्स भी सेट नहीं रहेंगे, तो कैसे बना सकते हो? फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एज अंडरस्कोर मेरा क्या होगा यहाँ पे? कैन समवन टेल मी व्हाट? अगर यहाँ पे एज ए अगर मुझे देना है तो मैं इसको कैसे करूं? अब कैन आई यूज द पेस्ट फंक्शन? पेस्ट ऑफ एज अंडरस्कोर भी अगर मैं डाल दूं, एंड देन व्हाट? अनक्लस्टर्ड का ith एलिमेंट, राइट? नाउ दैट विल हेल्प मी विथ अ सेपरेटर ऑफ नॉट, राइट? एंड इसमें मैं स्टोर कर दूं, ठीक है? तो दिस विल हेल्प मी. क्या हुआ? टारगेट ऑफ असाइनमेंट एक्सपेंड्स टू नॉन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट. Sorry, just give me 1 second, guys. This is working. This is a problem. If paste is not working with a variable name, then I'll have no option but to do that. Just give me a moment. I'll have to see why this error is coming through. This is not an expected error. 1 minute देना मुझे. Like the other alternative is obviously to like go through each of A, B, C, D's. सर हम एग्रीगेट यूज कर सकते हैं ना? क्या यूज कर सकते हैं? एग्रीगेट फंक्शन. अच्छा, एग्रीगेट यूज कर सकते हो. एग्रीगेट फंक्शन से होगा क्या? बट बिकॉज द ओनली थिंग इज कि आपको क्लस्टर वाइज निकाल के उसको स्टोर भी करना है, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे किससे एग्रीगेट करोगे? लाइक एज का अलग, स्पेंड अच्छा, का अलग, ऐसे. ओके, हाँ, एग्रीगेट वैसे भी कर सकते हो. सो एज स्विगल यू आर सेइंग यू विल डू से व्हाट? क्लस्टर नेम्स, राइट? ऐसा, राइट? दैट इज व्हाट यू हैव इन माइंड. बताओ क्या हुआ? हाँ. फंक्शन इज मिसिंग. फंक्शन इज मीन, राइट? व्हाट हैपेंड नाउ यार? What is the problem here? फंक्शन का एन कैपिटल करना Oh, पड़ेगा. sorry. Yeah. Right now, storing this is a problem. देखो, my only concern is like if I don't store it ना, using it in the next parts becomes a problem, right? क्योंकि आपको next part में क्या निकालना है? आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है, right? तो अगर आप वो नहीं करते हो, आपके लिए यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना becomes a very difficult job, right? So that's my only concern कि how do I do this in a manner कि ये बहुत ही easy रहे from a data handling point of view, right? क्योंकि अभी आप इसको कैसे स्टोर करोगे? like आपको वापस aggregate कर करके you'll have to store it differently, right? मतलब age underscore a करके 35.28 लिखोगे तो इसको मतलब बार बार इंडेक्स आउट करना होगा ना, but still doable, right? मैं ये सोच रहा हूँ like what is the simplest way? Just let me think a minute. Or if we can make variable names in our dynamic,
Let's see. क्योंकि R में I remember we can make it dynamic by using the assign function, but I don't know whether you all are allowed to use that or not. So let's see. I don't think you are allowed to use that. दिक्कत वही है. Because we can use lists and like paste zeros. We can use paste zeros, right? And we can say make dynamic variable names, environment से index कर सकते हैं अपने. But I don't want to get into that complicated thing right now. It would be then easier for you all to use the aggregate function itself. क्योंकि looping में क्या होगा, you will like keep store. You can't store it in the same object again and again, right? Or you can do one thing. Can we create a vector out here कि I के ith element में store करते जाओ. For example, I create an age. आपको पता है age में 4 elements हैं, income में 4 elements है, उसमें 4 elements है, इसमें 4 elements है. I think that would work. So क्या कर सकते हो आप यहाँ पे? You can have age में you can have 4 zeros, for example, or numeric of that also works, right? Same for income and same for your what to spend score, right? So I would not want to name as age, income and वो क्योंकि वो exact column names है. There's a chance of confusion if you attach anything. So this should work now. So age of 1 of ith. Now I don't have to make different variables. I'll always remember that कौन सा part is कौन सा. आगे भी अगर मुझे indexing करके वापस कुछ calculations repeat करने, it comes handy, right? So spend underscore score 1 of ith element becomes this. ठीक है? Age 1 क्या हुआ भाई? Income 1. चलो. So now I've got all my vectors जिसमें मेरे सारे clusters के means है for every variable. ठीक है? चलो. Now that I've got these, next part says what? Construct new columns in the data set which contains the Euclidean distance between the variables and centers. Do this for all the variables and print the data set. ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? Like this is the big one जहाँ पे आपको बेसिकली आपको सारे यूक्लिडियन डिस्टेंसेस कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो जब आप यूक्लिडियन डिस्टेंस पहले 50 रोज के लिए कर रहे हो तो आप कौन से को यूज करके करोगे? जो हमने पहले वाले एलिमेंट से की. ठीक है, जब बी 51 टू लाइक नेक्स्ट 100 रोज के लिए कर रहे होगे तो आप किसके लिए करोगे? जो हमने सेकंड वाले एलिमेंट्स में स्टोर करके रखा है, राइट? सो दैट इज समथिंग यू विल हैव टू डू, राइट? तो अब इसके लिए क्या करोगे? यू विल हैव टू पेस्ट डिस्टेंसेस, बट आपको यूक्लिडियन डिस्टेंसेस सारे वेरिएबल्स के लिए निकालना है. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कंस्ट्रक्ट न्यू कॉलम्स इन द डेटा सेट व्हिच कंटेन्स द यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन द वेरिएबल्स एंड द सेंटर्स. डू दिस फॉर ऑल द वेरिएबल्स, राइट? सो क्या होगा? आपका डिस्टेंस फ्रॉम ए, डिस्टेंस फ्रॉम बी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम डी, आप चारों प्रिंट कर सकते हो एक तरीके से, राइट? बिकॉज वंस यू हैव ऑल द लाइक व्हाट डू कॉल ऑल द डिस्टेंसेस, आप उसको चारों कॉलम में स्टोर कर सकते हो और फिर उसको जिस हिसाब से अपना यूज करना है उस हिसाब से यूज कर सकते हो, राइट? तो व्हाट कैन वी डू? वी कैन क्रिएट 4 न्यू कॉलम्स in this vector, in this data frame mall customers 1, right? कैसे create करोगे? Your mall customers 1 में distance from A, जैसे अपने search इसमें पहले बनाते हैं, कैसे बनाओगे distance from A? क्या होगा बताओ अपना distance from A, Euclidean distance? Sorry, tell me guys, कैसे होगा? What is Euclidean distance? Tell me. आप क्या करते हो? आप सारा x2 माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करोगे, फिर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर करोगे, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर करोगे और फिर पूरी चीज का स्क्वायर रूट ले लोगे, राइट? सो द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज से एज से शुरू करते हैं. मॉल कस्टमर्स 1 का एज माइनस मॉल एज का
एज 1 का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है. दिस आई कैन टेक अ स्क्वायर ऑफ, राइट, एंड देन एडिशन ऑफ व्हाट, देन एडिशन ऑफ सेम वे मॉल कस्टमर्स 1 का इनकम माइनस इनकम 1 का फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि वो एक आया अभी, फिर स्क्वायर्ड अप, देन सेम थिंग विथ मॉल कस्टमर्स 1 का स्पेंड स्कोर माइनस माइनस अपना स्पेंड स्कोर 1 का फर्स्ट एलिमेंट, राइट, taking a square of it, right, and then taking a square root of it at the very beginning, ठीक है. So that will give you the Euclidean distance for A, ठीक है. So if I have a look at it now, I've got ये इस कॉलम में केवल A के लिए Euclidean distance है, तो एक तरीके से ये केवल पहले 50 रोज के लिए it will given you the distance from A, और बाद में उन बाकी पॉइंट्स का भी A से ही डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है. अब यही चीज अपने किसके लिए यूज कर सकते हैं, बी, सी एंड डी के लिए, ठीक है. तो आई जस्ट कॉपी पेस्ट राइट नाउ एंड देन विल अपडेट द कोड्स अकॉर्डिंगली. सो एक चीज तो क्या करना है, कॉलम हेडर्स सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, और फिर अपने को एक और चीज करना है. जहां इंडेक्सिंग की हमने पहले वाले में 1 की है, तो दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3 और चौथे वाले में 4 करते रहना. दैट्स ऑल वी नीड टू डू एंड विल बी डन. अगेन यहाँ पे भी अगर वेरिएबल नेम्स अगर आप एनवायरनमेंट से वो कर सकते थे, जो अपने वैसे एक्सप्लिसिटली सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज पॉसिबल एज वेल कि वेरिएबल नेम्स को भी यू मेक डायनेमिक इन नेचर. सो लाइक एज अ फ्यूचर लर्निंग में भी ट्राई लुकिंग इनटू दैट हाउ दैट कैन बी डन जब एग्जाम हो जाए, ठीक है. सो दिस इज समथिंग दैट कैन हेल्प यू. नाउ वंस दैट इज डन, आप अपने मॉल कस्टमर्स देख लो, आपके पास सारे यूक्लिडियन डिस्टेंस आ गए, ठीक है. ओ आई थिंक डिस्टेंस ए बी सी डी मैंने चेंज नहीं किया. have a look now. Perfect, ठीक है. So I've got all your distance A, B, C and D. चलो, now what? Now they are saying construct a new column in the data set containing the cluster name which is closest to the center as per the Euclidean distance calculated above. तो अपने को क्या करना है, अपने पास सेंटर है, हर क्लस्टर का सेंटर है. अपने को ये देखना है अपना जो यूक्लिडियन मतलब अपना जो वो आया है, क्या बोलते हैं, कौन सा अपना जो आया है इस बार, किसका यूक्लिडियन डिस्टेंस इज क्लोजेस्ट टू द सेंटर, ठीक है. उस क्लस्टर का नाम डालना है, ठीक है. तो कैसे करोगे ये, आपके पास बेसिकली 4 कॉलम है, ठीक है. आपके पास चारों कॉलम्स के डिस्टेंस है, उन चारों कॉलम्स के डिस्टेंस का मिनिमम निकालोगे, ठीक है. और फिर वो किस कॉलम में है, अगर आपके 5th कॉलम में तो आपका ए आएगा, 6th कॉलम में तो बी आएगा, 7th कॉलम में तो सी आएगा, और 8th कॉलम में तो डी आएगा, राइट. दैट इज व्हाट यू विल बेसिकली डू इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कोड, राइट. ये कैसे कर सकते हैं बताओ, एनी आइडियाज गाइस, हाउ कैन यू परफॉर्म दिस, एनी आइडियाज. आपको क्या करना है, आपको मिनिमम निकालना है, ठीक है. और देन व्हाट डू यू नीड टू डू, anyone tell me guys, can you loop through all the rows, can you find the which dot min of 4 rows, and then you can calculate कि आपका किस में है वो, yes or no, can we do something like that, ठीक है. कि आप you loop through all the rows, right, you calculate a which dot min, right, and एक बार आपके पास वो चारों का which dot min आ जाए तो आपको क्या करना है, बेसिकली यू जस्ट नीड टू एक्सट्रैक्ट की कौन सा which dot min आया, 1 2 3 4, राइट. एंड 1 2 3 4 को फिर ए बी सी डी से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट. वी कैन डू समथिंग लाइक दैट, या. सो व्हाट डू वी नीड टू डू, फॉर एग्जांपल इफ आई लूप थ्रू ऑल द रोज इन द this data frame, right. So n row of mall customers 1, right. Let's loop through all the rows here. अगर मुझे निकालना है पहले 4 कॉलम 1 2 3 4, राइट, 5 6 7 and 8, राइट. इन पांचों के लिए
मुझे जब मैं ith रो में हूँ तो ith रो के लिए एंड 5 6 7 8 राइट, इसमें मैं विच ऑफ मिन निकालूंगा, ठीक है, विच डॉट मिन। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा लाइक अ गुड वे टू लाइक वर्क थ्रू लूप्स इज, हमेशा जब आप नया कुछ लूप बना रहे हो एक सैंपल वैल्यू के लिए निकाल लो, ठीक है। तो अब जैसे ये आपको दिखा दिया कि ये क्या है, डिस्टेंस ए, राइट, डिस्टेंस ए आपका मिनिमम है, लाइक यू गॉट दैट बेसिकली एन आंसर यहाँ पे कि ए का जो अपना है वो मिनिमम है, राइट। अगर यही आपका फॉर एग्जाम्पल एक क्विक चेक कर लेते हैं, लाइक 100 वाला का आई वुड एक्सपेक्ट कि वो बी या सी के पास हो, तो देखो डिस्टेंस सी आ गया, राइट। सो यू गॉट 1 में ए, 2 में बी, 3 में सी, तो ऐसे करके आपको विच डॉट मिन से अपना पोजीशन तो मिल जा रहा है, राइट। अब आपको क्या करना है, इसको like you can leave it at 1 2 3 4 as well, and बाद में if else condition से replace कर सकते हो, that is one thing that you can do, right। so एक बार के लिए मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, I can say कि मेरे मॉल कस्टमर्स के एक कॉलम जिसमें क्लस्ट नेम्स तो ये यहाँ पे है, से ये क्या होगा मेरा, लाइक दिस विल इन अ वे बी माय सेकंड क्लस्ट नेम, राइट। सो क्लस्ट नेम 2 बना देता हूँ मैं इसको रिपीट ऑफ NA कॉमा say what n row of mall customers right now, right, and then यहाँ पे I am replacing every time in the ith row and the 9th column, right। so I'll have all my mall customers 1, why is mall customers 1 not found, customers, right। अब आप अगर मॉल कस्टमर्स देखो उसमें ABCD नहीं आया होगा, भी 1 2 3 4 आया होगा in terms of what is the new cluster name, right। and a problem that I can see here, not a problem but yeah, like 2 is occurring a lot, ठीक है, it might be very well be the case। अपने को अब क्या करना पड़ेगा, इसको if else से रिप्लेस कर सकते हो आप ABCD में, 1 और 2 को ABCD बना सकते हो, right, that is one thing that you can do, क्लियर है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपके पास ऑलरेडी इफ यू डोंट वांट टू डू सब स्ट्रिंग, आपके पास एक चीज याद रखो, जब आपके पास विच डॉट मिन आया था, यू गॉट, हम लाइक वी वर स्मार्ट एनफ टू ऑलवेज हैव डिस्ट अंडरस्कोर और फिर उसके बाद इसका नाम, तो आप इसको जब इसका नेम्स आप एक्सट्रैक्ट करते हो, राइट, तो आपको हेडर मिलता है, राइट, एंड देन यू कैन यूज अ सबस्ट्रिंग फंक्शन ऑफ इट, राइट। तो सबस्ट्रिंग फंक्शन कैसे काम करता है, आप कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे स्टॉप करना है, राइट। So I can use a substring function over here. I'll say start at the 5th element and I think stop at the 5th element. Now substring function works a lot differently at times. So I think we'll have to start at the 6th element and stop at the 6th element and then I'll get my this, ठीक है। तो अब मैंने generalize कर लिया, I'll just copy this here and just replace that 100 with I and then this should work as well. Then I'll not have to go through that entire ABCD वाला चीज। so मॉल कस्टमर्स और 1 में आपको फाइनली ABCD में मिल गए, ठीक है। does this make sense guys, yes or no, any questions। तो हमने नया कॉलम बना लिया जिसमें क्लोजेस्ट क्लस्टर नेम भी आ गया अपना, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, जनरेट अ 4x4 मैट्रिक्स showing all the combinations of the customers old and updated clusters and comment on the cluster। तो आपने पता है अपने टेबल यूज करते हैं, अपने पास पुराना क्लस्टर नेम क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो ऑल यू आई डू इज मॉल कस्टमर्स डॉलर क्लस्ट नेम्स, राइट, मॉल कस्टमर्स डॉलर क्लस्ट नेम 2, राइट, एंड दैट विल गिव मी एक तरीके से मैट्रिक्स की, पहले जो ए में थे 50 लोग उसमें से अब 46 यहाँ है, 4 यहाँ पे है, पहले जो बी में 50 लोग थे, एक ए में आ गया, फिर बी में 41 आ गया, फिर सी में 48 आ गया एंड सो ऑन, ठीक है। सो यू कैन कमेंट ऑन इट लाइक दैट एज वेल। फिर क्या लिखा हुआ है, प्लॉट द कस्टमर कॉलम इनकम अगेंस्ट स्पेंड स्कोर यूजिंग 4 distinct colors to identify different clusters according to the updated cluster, comment on the graph, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक ऐसे कलर्स यूज करोगे and you have to name different clusters, like plot different clusters with a different name. Now if this would have been a ggplot function, if it would have been really easy, but since we don't have that,
अपने को प्लॉट फंक्शन में ही विल हैव टू बी अ बिट स्मार्ट, ठीक है. सो दिस इज पार्ट 8, राइट. अपने को क्या करना है, इन अ सिंपल वे, इनकम अगेंस्ट क्रेडिट स्कोर, ठीक है. तो अपने को मॉल कस्टमर्स डॉलर स्पेंड स्कोर कॉमा मॉल कस्टमर्स डॉलर इनकम, ये तो अपने को करना है. बट प्रॉब्लम क्या है, जब आप ये प्लॉट कर रहे हो सब सेम कलर में आ रहा है. अब आप कलर फंक्शन यूज भी करो तो सारे फंक्शंस कलर हो जाएंगे, राइट. आई डोंट वांट दैट टू बी द केस, राइट. मुझे चाहिए अगर पहला मतलब ब्लू, ए सारे ब्लू हो, बी सारे वो हो, सी सारे वो रेड हो, डी सारे ग्रीन हो, वैसा कुछ, राइट. सो लेट्स मेक अ न्यू कलर्स वेक्टर जहां पे एक इफ एल्स कंडीशन अपने डिफाइन कर दे, ठीक है. कैसा इफ एल्स, इफ मॉल कस्टमर्स का प्लस नेम्स टू इज इक्वल से ए, देन गिव मी व्हाट, गिव मी रेड, ठीक है. फिर क्या होगा, फिर वापस एक नेस्टेड इफ एल्स बनाएंगे कि इफ एल्स स्मॉल कस्टमर्स का क्लस्ट नेम्स इज इक्वल्स बी, देन गिव मी ब्लू, ठीक है. यही होता है ना, इफ के बाद अगर कंडीशन मीट हो गई तो वो ट्रू वाला स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है. तो फिर एक और बात मुझे, एक और मतलब चाहिए कि इफ एल्स मॉल कस्टमर्स में क्लस्ट नेम्स में if I get C, then give me what? Then give me say green, right? Another column. And lastly, अब तो last condition है, तो you can let it be black as well, ठीक है. Now red, blue, green, black, I've got my colors, right? All I need to give is कि अब मैं ये colors यहाँ दे दूँ, तो उसी order में colors आ जाएंगे. हर dot के लिए मैंने colors दे दिए. So see, you've got your colors के हिसाब से this thing. समझ में आया? Tell me guys, yes or no? Does this make sense to everyone? Any questions? All good? बताओ यार. Is this clear to everyone? Yes. चलो नेक्स्ट पार्ट में आते, क्या लिखा हुआ है, यूज द के मीन्स कोड ऑन द डेटा सेट मॉल अंडरस्कोर कस्टमर्स 1 एंड प्रिंट द समरी ऑफ द आउटपुट, डिटरमाइन द एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, set the series 1 2 3, centers as 4 and end start as 10, comment on the output. तो अब अपने को डायरेक्टली के मीन्स यूज करना है. के मीन्स यूज करने का तरीका क्या बताओ. पहले उन तो अपने को set dot seed कर लेना सबसे पहले, राइट. क्योंकि अगेन इट्स नॉट अ सिमुलेशन थिंग बट बेस्ड ऑन इटरेशंस. तो इन्होंने set dot seed क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 1 2 3 दे रखा है. सो आई विल डू अ set dot seed. फिर मैं जब के मीन्स फंक्शन यूज करूं तो कैसे क्या लिखूं मैं, बताओ. टेल मी. मैं मॉल कस्टमर्स के सारे कॉलम्स दे दूं क्या, नहीं. जो कॉलम्स के बेसिस में मुझे क्लस्टरिंग करनी है केवल वो कॉलम्स. तो इन दिस केस द फर्स्ट 3 कॉलम्स, राइट. सो मॉल कस्टमर्स ऑफ ऑल रोज द फर्स्ट 3 कॉलम्स, ठीक है. और मुझे क्या देना है, 4 सेंटर्स देने हैं और n start equals 10 देना, ठीक है. ऑल यू नीड टू डू इज दिस, राइट. और आपके पास चारों क्लस्टर मीन्स आ जाएंगे, क्लस्टरिंग वेक्टर आ जाएगा कि अब नया क्लस्टर नेम्स क्या है, ठीक है. नए क्लस्टर साइजेस आ गए 28 39 38 94, ऑल ऑफ दोस थिंग्स दैट यू हैड प्रीवियसली, अब वो पॉपुलेट कर दिया उसने, ठीक है. तो अपने इसको कहीं स्टोर भी कर लेंगे और उसको वापस एंटर कर लेंगे, ठीक है. अच्छा, आउटपुट पे इसमें कमेंट करने को भी कहा है. व्हाट डू यू कमेंट ऑन द आउटपुट. यहाँ पे की चीज कमेंट करने को क्या है, एक तो की है 4 क्लस्टर्स आ गए अपने पास, वी हैव ऑल द क्लस्टर मीन्स. क्लस्टर्स के साइजेस देखो आर वेरी डिफरेंट नाउ, दे आर नॉट 50-50 के साइजेस वाले क्लस्टर्स एनीमोर. दे आर like one cluster is like the fourth cluster is very large with 95 values and the other clusters are relatively smaller. And जो अपना degree of variance explained है by the clustering, that is only 66%, ठीक है. तो अपने को we should aim for a higher accuracy क्योंकि this is quite low, right. अच्छा, फिर अपने क्या करेंगे, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, plot the cluster diagram of the above result and compare the plot of income and spend score in part 8. तो पार्ट 8 में जो बनाया था और अभी जो बनाया उन दोनों को कंपेयर करना है. सो लेट्स डू दैट. इनकम और एज स्कोर, बट पहले तो अबव रिजल्ट का पूरा प्लॉट कर देना क्लस्टर डायग्राम, ठीक है. तो फर्स्ट विल ट्राई टू डू दैट. उसके लिए क्या करोगे, इसको K1 में फॉर एग्जांपल स्टोर कर दो, राइट. देन विल डू जस्ट अ प्लॉट ऑफ K1, राइट. इससे सारे क्लस्टर्स, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग,
आप सॉरी प्लॉट ऑफ K1 नहीं, आप उससे क्लस्टरिंग यूज करोगे, आप प्लॉट तो अपने इनकम और वही करोगे, राइट? सो टू वेयर आर वी हियर, प्लॉट ऑफ दिस कॉमा दिस, राइट? अब आपके कलर्स बस चेंज हो जाएंगे, राइट? सो योर कलर्स विल चेंज टू व्हाट, आपके नए क्लस्टर्स जो बने हैं, राइट? सो दैट इज देयर इन K1 डॉलर क्लस्टर, राइट? तो इसमें व्हेन यू प्लॉट दिस आउट, दिस इज योर न्यू प्लॉट, right? So if you compare the two, yeah, this one and this one, right? Now the only problem नहीं, difference क्या दिख रहा है आपको, ये देखने की कोशिश करते हैं, right? यहाँ पे एक जो हमने अब नया बनाया है, we know the result as well, so it becomes easier for us to comment on it. One of the numbers is very high in occurrences, right? अपने को अब दिख रहा है कि blue is much more, जो 4 को इंडिकेट करता है, right? That has become much more, right? So पहले से डिफरेंस बहुत बदल गया है, ठीक है, क्योंकि क्लस्टरिंग 4 के तरफ बहुत ज्यादा लाइक वो है, क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा क्या बोलते थे, राइट? क्राउडिंग है, राइट? So cluster 4 has a lot of values, but cluster 1, 2, 3 have much lower values as compared to the earlier one, जहाँ पे हमने मैनुअली सारे क्लस्टर मीन्स निकाल के डिस्टेंसेस, यूक्लिडियन डिस्टेंसेस निकाल के किया था, राइट? Then in the next part they are saying write a code to determine the totals within sum of squares for number of clusters is 1 to 10, plot the number of clusters on an x-axis and total within sum of squares of on y-axis. तो अपने को क्या करना है, टोटल विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स सारे लेके आने हैं। हमने ये आई थिंक एक जगह किया भी था, तो लेट्स जस्ट लूप थ्रू एवरीथिंग एंड गेट दिस डन क्विकली। तो अपने को क्या करना है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, टोटल विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना है, राइट? क्या क्या के लिए निकालना है, 1 to 10 के लिए। सो लेट्स क्रिएट अ लूप फॉर I in 1:10। हर बार क्या करना है, विल फिक्स अ K मीन्स, राइट? तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको K2 में स्टोर करता हूँ इस बार, एंड द नंबर ऑफ क्लस्टर्स विल कीप चेंजिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and start while let it be. What am I interested in? I'm interested in the within sum of squares. So ये total within SS, right? So I'll copy this out to the bottom, right? यहाँ पे K2 आएगा and I'll keep storing it somewhere. So total within में के ith element में maybe I'll keep storing it, yeah? And I'll create this as a dummy vector पहले so that it does not error out. To rep 0, 10. I'll run this through. Then all you have to do is plot of 1:10, total within, है ना? अब आप इसमें type equals over plotted करोगे तो बेस्ट रहता है यहाँ पे, because it gives you a line as well as this thing. तो आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पे like it's leveling off. If you see 5 से 6 तक steep decline है, उसके बाद तो gradual decline है, right? In fact 5 तक ही steep decline है, उसके बाद you have a gradual decline in the within sum of squares, right? फिर क्या लिखा हुआ है, rewrite the K means code with the appropriate number of clusters identified in part 11 and above and paste a summary, also plot the graph. So basically I'll have to repeat this part, parts 9 and 10, जहाँ पे मैं number of clusters को I'll fix at what? I'll fix at 5, क्योंकि I can see that it has leveled off after 5. I'll call it K5. Number of clusters are the only thing that will change. Set.seed K5 and यहाँ पे K5 cluster will be the thing, right? अब देखो how does it change? 5 cluster बने, almost equal size clusters लग रहा है मुझे देख के, ठीक है? अगर आपको confirm करना है, you just enter K5. See, you have एक cluster बड़ा है बस, and then almost everything's of the same size, right? So cluster 3 is relatively bigger in our case, but if you compare it with the actual one, ठीक है, it's not the same, but it gives you distinct areas, ठीक है? ये एक एरिया हो गया, 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 right? So it has helped you classify the data in a better manner. Your various degree of variance explained has gone up over 3/4, right? और आप अच्छे like areas में distinct classify कर पा रहे हो अपने डेटा को। समझ में आया? बताओ सबको, किसी को कोई भी दिक्कत है इसमें? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था,
but I don't think it was a like it had any difficult part as such. ठीक है, हमने बीच में ऑटोमेट करने की कोशिश की तो वहां थोड़ा फंसे, बट like if we didn't try to do that as well, it was fine. सब मैनुअली करते तो, but it didn't have anything which was tricky as such. जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में तो वो टी कॉपुला ऑन नॉर्मल कॉपुला से थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था, राइट? बट इसमें वैसा कुछ ट्रिकी नहीं था. ओके, कूल. लेट्स फाइनली लुक एट. हाँ हाँ, आप सिर्फ पार्ट 8 का कोड दिखा सकते हो. पार्ट 8 का दिस वन यस, कोल्स वाला. कलर्स वाला. देखो कलर्स में ना मैंने इफ एल्स कंडीशन यूज किया. ठीक है, इफ एल्स कंडीशन क्यों यूज किया? ए हो तो मुझे एक कलर दे दो, बी हो तो एक कलर दे दो, सी हो तो एक कलर दे दो, डी हो तो एक कलर दे दो. ठीक है, अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है ना तो आप नॉर्मल इंडेक्सिंग भी कर सकते हो. कैसे? आप एक कलर्स करके वहां पे एक डेटा फ्रेम बना, मतलब कॉलम ऐड कर देते. ठीक है, और फिर उसको एक बार डमी वैल्यू असाइन कर देते. फॉर एग्जांपल मैं कलर्स को से रिपीट ऑफ एन ए कर देता है एक बार. ठीक है, कितनी बार? जितनी बार भी मेरा वो एन रो ऑफ मॉल कस्टमर्स फॉर एग्जांपल. ठीक है, उसके बाद मैं कलर 1 में असाइन करता जाता वैल्यूज. ठीक है, तो कैसे असाइन करता? मैं कहता कि जहां जहां वहां पे ए है वहां वहां यहाँ पे रेड दे दो. कैसे करोगे? आप नॉर्मल इंडेक्सिंग से कर सकते हो ना ये वाला चीज तो, राइट? यस और नो, राइट? आप क्या बोलोगे? जस्ट सी wherever my mall customers has equal a. ठीक है, mall customers डॉलर cluster names equals a, वहां पे मुझे 1 दे दो. ठीक है, और ये वाला कोड आपको 4 बार कॉपी पेस्ट करना और कुछ नहीं. 1 2 3 4, राइट? बी सी एंड डी. तो आपने कलर 1 2 3 4 दे दिया एक तरीके से. एंड कलर्स 1 2 3 4 भी काम करते हैं, रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक भी काम करता है. ठीक है, द गुड थिंग अबाउट द कलर वाला आर्गुमेंट देयर इज वो 1 2 3 4 में भी कुछ ना कुछ प्लॉट कर देगा आपके लिए. ठीक है, तो अगर मैं ये COL1 COL2 COL ये पूरा कर दूं तो आप देखोगे आपके कलर 1 में आपके पास ऐसा आ गया. ठीक है, और फिर आप इसको COL1 दे सकते हो एंड दैट ऑल्सो वर्क्स. ठीक है, अगर ये फेल्स कंडीशन समझने में दिक्कत हो रही है, आई थिंक दिस विल बी स्लाइटली सिंपलर. समझ गए? यस यस. चलो, cool. Let's look at the last first question. In fact, time series जैसा लग रहा है. 33 marker. You're provided with the data set citydata.csv which contains the following columns: date, temperature, and demand. Use R, perform the following task: load the data set and convert the date column in the date format. Let's do that. चलो, just a moment. एक सेकंड यार. City data. Yes. So I'll just import it into something called data. I've got the data frame. इन्होंने सबसे पहले देखो क्या बोला है कि इसको डेट फॉर्मेट में करो. From what it looks like, it is in MMDD YYY format. Why do I need that? क्योंकि जब आप as.date करते हो आपको उसको बताना पड़ता है कि किस फॉर्मेट में आपका डेट फंक्शन, लाइक डेट का कॉलम है, राइट? सो इट कैन बी YMD, राइट? इट कैन बी DMY, इट कैन बी एनीथिंग. तो आपको वो बताना है. सो what will we do? As.date, right? Of what? आपका डेटा डॉलर डेट, राइट? एंड यू विल गिव द टाइप ऑफ द डेट. ठीक है, तो अपना फॉर्मेट क्या होगा यहाँ पे? आर फॉर्मेट विल बी, देखो अपने को कैसा फॉर्मेट मिला इनपुट में. लेट्स हैव अ लुक. we've got we've got DMY, right? That's the format that we've got. मतलब राइट? यस और नो? तो अपने वो फॉर्मेट उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया ये वाला बात? टेल मी गाइस, यस और नो? इज दिस क्लियर टू एवरीवन दैट अगर मैं यहाँ पे DMY दूंगा देन इट वर्क्स फॉर मी? अच्छा, इसमें एक और चीज कभी कभार रहती है, हाइफन है बीच में कि आपका बीच में बस वो स्लैश है, तो अपने बीच में स्लैश है, राइट? सॉरी, हाइफन है. तो मतलब अगर आप ट्राई फॉर्मेट देखोगे तो वो अपने आप ये हाइफन वाला काम कर रहा है. सो यू डोंट नीड टू गिव दैट थिंग एज वेल. अगर आप as.date भी करोगे सो इट विल डायरेक्टली वर्क. वो अपने आप ये बात पकड़ लेगा आपकी. ठीक है, कि डे ये है, मंथ ये है और ईयर ये है. ठीक है, इज दिस क्लियर? बट एक और चीज प्रॉब्लम है, केवल हाइफन नहीं, आपका जो डे मंथ एंड उसका भी ऑर्डर है,
राइट? सो इट्स बेटर कि आप फॉर्मेट दे दो यहाँ पे और उसी फॉर्मेट के हिसाब से वो रीड होगा, राइट? सो व्हाट इज अ फॉर्मेट इन दिस पर्टिकुलर केस? Format is %d, right? We are starting with day, then we have an hyphen, then we have month, right? And then we have an hyphen which gives me the year, right? तो अब आप जब उसको as date करोगे, it has recognized that कि आपका 2020 है, right? Then आपका December आया, मतलब आपका month आया, then आपका day आया finally. Then R stores it in the right manner, right? So ये करके मैं डेटा के ओरिजिनल कॉलम डेट में रिप्लेस कर दूंगा. ओके, नाउ इट इज इन द डेट फॉर्मेट. अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ डेटा देखोगे, यू विल सी पहले वो डेट फॉर्मेट में नहीं रहता, अब वो डेट फॉर्मेट में आ गया. ओके, मेक सेंस टू एवरीवन? एनी क्वेश्चंस? डेट फॉर्मेट में कन्वर्जन हमने ऑल्दो मोर्टालिटी वगैरह के लिए बहुत किया, प्रोजेक्शंस के लिए, बट एनी क्वेश्चंस है? चलो सर हमने जो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, पर अगर हम देख रहे हैं ऊपर कॉलम्स में भी, तो डेट, ईयर, मंथ एंड डेट वैसे आ रहा है, इवन इफ वी हैव गिवन द फॉर्मेट. या सो व्हेन वी गिव इट द फॉर्मेट, हम ये फॉर्मेट देते हैं, उसको रीड कैसे करना है. ओके, कि आपके ओरिजिनल डेटा में कैसे था. एक बार ओरिजिनल डेटा में हो जाए ना, आपने दे दिया, फाइनली आर उसको YMD में ही स्टोर करता है. ओके, यू आर गिविंग इट कि सोर्स डेटा में वो DMY था. ठीक है, अब आप ये वापस रन करोगे तो गलत हो जाएगा. ठीक है, आपके सोर्स डेटा में कैसे था आप वो स्पेसिफाई कर रहे हो. ओके, यस. गुड. फिर क्या लिखा हुआ है? राइट द प्लॉट टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ओवर टाइम ऑन द सेम ग्राफ एंड डिस्क्राइब द ऑब्जर्व टेम्प. तो आपको क्या करना है? टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिसिटी ओवर टाइम. तो एक्स एक्सिस में टाइम रहेगा आपका, वाई एक्सिस में एक बार टेम्परेचर रहेगा, एक बार आपका डिमांड रहेगा. ठीक है, एंड डिस्क्राइब द ऑब्जर्व ट्रेंड. लेट्स हैव अ लुक. सो लेट्स डू अ सिंपल प्लॉट ऑफ व्हाट डू वी हैव ऑन एक्स एक्सिस. क्या कहा है उन्होंने? गेट दिस ओवर टाइम, तो डेट. ठीक है, एक्स एक्सिस में अपने पास डेट आ जाएगा, डेटा डॉलर डेट, राइट? सॉरी, डेटा डॉलर डेट. एंड वाई एक्सिस में पहले एक बार टेम्परेचर ले आते हैं, सो डेटा डॉलर टेम्परेचर. सो आई गॉट दिस. नाउ दिस इज लुकिंग थोड़ा सा वैसा, तो टाइप इक्वल्स, सॉरी लाइन कर देता हूँ. ठीक है, सो आई विल गेट अ, नाउ दिस इज नॉट अ वेरी गुड ग्राफ एज वेल टू शो. यहाँ पे दिक्कत क्या है मुझे, like why is this connecting to this? That's the problem. जनवरी से सीधा यहाँ क्यों कनेक्ट कर रहा है? Is there some problem in reading the date? Because this should not have been the case. मतलब I would have expected a gradual increase. But anyway, let's have a look. Let's have a quick look, guys. आप लोग भी चेक करो कि आप लोग का, मतलब आप लोग के भी ग्राफ में रिजल्ट ऐसे ही आ रहे हैं क्या? So quick check maybe. And let me know whether you're getting a same result जो मेरा जैसा दिख रहा है. यस सर. आप लोग में भी सेम आ रहा है? ओके ओके ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. दिस इज बैड. ओके, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो -10 to 450 इसके वायलिम को चेंज करना होगा अपने को. -10 to 450, राइट? व्हाट हैपेंड? -10 to 450 इसमें लाइंस करना होगा. ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज दीज टू लाइंस. अगर ये दो लाइन को मैं छोड़ दूं, देन एवरीथिंग्स फाइन. लेट्स हैव अ क्विक लुक. कितना है? 1995 ऑब्जर्वेशंस है, राइट? हैव वी नॉट डन समथिंग? This 3012 is making a noise. This 339, that is making quite a bit of noise. जो 2020 वाला जो वैल्यू है, and a few other values. ठीक है, एक बार के लिए let's let it be. अपने बाद में देखेंगे इसको क्या हो रहा है. But there's something definitely that's fishy that's happening here, right? एक बार let's have a look at our original data frame. एक सेकंड रुको. Sorry for the more time that we are consuming, guys. एक सेकंड देना मुझे बस. Let's look at the original data frame and try to see
just make sure whether we have misinterpreted it in any way. 1/1/2021, right? 1/1/2020. That's a problem as well. यहाँ पे 2020 का डेटा है भी क्या? वो तो ये तो कैरेक्टर है, ढंग से दिखाएगा नहीं. But we don't have 2020 data in our original data set. How is it reading that? That's a problem as well. Okay. So that's one problem for sure. कि देखो अपने पास ओरिजिनल में डेटा कैसा था? Where data 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1 starting from 2021, right? And when it got converted into an as.date, it got converted into 2020, right? That is one of the key problems that I could notice. ठीक है, एक बार के लिए let's do one. अच्छा, और सब कुछ 2020 में ही है. That's even more weird. This is bad. Let's have a look. क्या कर सकते हैं अपने as.date को? Let's play around with that. We have it in city_data now. ठीक है, city_data, right? And when I look at it, it still is doing that. 2020 में convert कर दे रहा है सबको, which I don't want, right? What if I do? I think ये Y problem है. Y, yes, that was the problem. Sorry, I didn't do a capital Y, जिसकी वजह से everything got messed up. तो अपने को क्या करना पड़ेगा? कैपिटल Y करना पड़ेगा जब as.date कर रहे हो, right? Or else everything gets messed up. तो मैं यहाँ पे इसको copy करके just pasting it here so that it uses a capital Y. ठीक है, एंड एक बार मैं सिटी डेटा यूज कर रहा हूँ. सॉरी सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि कैपिटल वाई से सिर्फ वो पूरी मतलब पूरा ईयर दिखाएगा 2021 मतलब 2021, अगर स्मॉल वाई तो 21 दिखाएगा, तो डिफरेंस क्या हुआ यार? देयर इज द डिफरेंस इज कि जब वो फोर्थ एलिमेंट पे आ रहा है ना, वो केवल 20 लिखा हुआ आ रहा है हर जगह. 2020 लिखा हुआ आ रहा है. इफ यू लुक एट डेट, देखो, right? There's some. Why did that happen? Sorry? Why did that happen? यही मतलब, like, I think it's a syntax problem. Like, it needs capital Y, from what I understand. I don't think the small y will give you just the year. It needs a capital Y thing there. It always needs a capital Y. अगर small y भी है, but तब आपके इनपुट में 2 लेटर होने चाहिए. इट्स नॉट अबाउट शोइंग, इट्स अबाउट इनपुट में अगर 2 लेटर है. बट हमारे इनपुट में तो कंप्लीट है ना. हमारे इनपुट में इफ यू हैव अ लुक एट आवर इनपुट, इट्स कंप्लीट, राइट? ओके, तो आई थिंक वो स्मॉल y की वजह से वो स्टार्टिंग के 2 लेटर्स वो रीड कर रहा था. एग्जैक्टली, केवल स्टार्टिंग के 2 लेटर्स रीड कर रहा था, और वो हमेशा 20 थे, तो 2020 बन गया. ठीक है. Now we do an as.date. I don't remember whether I've done an as.date or not. Just a second. I don't think we have done it yet. So city date kar diya. Now let's have a look at city data. Now it looks good, right? Let's do a structure of data as well. Okay. Structure of data gotten converted into a data frame, and then we'll use city data. Okay. City data, city data, city data, and city data. Plot and lines. Now it looks like a smoother graph. You can use different colors, xlab, ylam. ये सब तो चेंज करना ही अपने को. So color से equals red, color equals blue, and we've got 2 graphs to ourselves. ठीक है. फिर क्या करना है अपने को देखना है. जैसे and describe the observed trend. क्या लग रहा है? कोई एक चीज सीजनल लग रही है? ये दोनों चीज सीजनल लग रही है. Both the things seem seasonal, right? ऊपर नीचे नहीं हो रहा, right? Yes or no, guys? The temperature as well as your demand for electricity is seasonal in nature, which makes sense, right? As usually your temperature goes down, things change as to how much energy do you need, right? How much electricity do you need, right? So उसी के basis पे आप comment कर सकते हो कि वो दोनों चीज seasonal in nature है. Then they are saying what? Write a code to find the relationship between energy demand and temperature. Plot a scatter plot to visualize the relationship between, and comment on the correlation.
तो देखो, one way of like looking at their relationship is finding out the correlation coefficient, the Pearson correlation coefficient. तो आप correlation पहले निकाल सकते हो, so city data dollar temperature and city data dollar demand, right? So that is a good starting point to just write a linear relationship. तो आप कह सकते हो linear like linear relationship तो quite weak लग रहा है, ठीक है? Positive relation है, that's sure, but there's a weak positive relationship. There's not, it's not very strong. और अगर इसी को graphically भी दिखाना है, then you can just plot a like plot, right? तो आपके पास for example usually I would say कि demand is based on electricity temperature, तो मैं temperature को x axis में रख रहा हूँ and y axis में demand को रख रहा हूँ, ठीक है? And this is how it looks like. आप like again circles change कर सकते हो. You can use a PCH to make it thinner, right? Say PCH equals 16 से I think it's very thick, and 19 से it becomes smaller. No, I think 17 किससे तो it becomes smaller. 20 से 20 से it becomes smaller, which becomes readable, and then you can give it a color. तो आप देख सकते हो बढ़ तो रहा है. There is a relationship, positive relationship, अच्छा, but it's not strong, right? It's very weak. Then they are saying what part 4 में they're coming to finally a time series object बनाओ with daily frequency and plot the graph. So let's plot that out. किसके लिए करना है? अपने को डिमांड के लिए करना है, ठीक है? तो ts अंडरस्कोर डिमांड में मैं क्या स्टोर करूंगा? टाइम सीरीज ऑब्जेक्ट, सिटी डेटा में जो मेरा डिमांड वाला कॉलम है वो, एंड कौन सा आर्गुमेंट यूज करूंगा इसको डेली रीड करवाने के लिए? टेल मी गाइस, बताओ. Frequency equals, frequency. yes, frequency equals 365 because I have daily data. आप चाहते हो तो इसमें start भी दे सकते हो because you know the starting calendar year, right? So you can provide a start point as well, but I don't think in this scenario it's going to matter as such. So I'm avoiding it for the time being. And then they are saying plot the graph as well. So I'll just do a quick plot of ts underscore d. So I've got the time series object plotted out here. Okay. Then part 5 में decompose the time series and plot a decomposed graph. Also plot a moving average line on the decomposed graph. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको decomposition करना है और फिर इसका जो ट्रेंड लाइन है वो भी प्लॉट करना है उसी पे, ठीक है. सो हाउ विल आई डू दैट? सो decompose फंक्शन तो इनबिल्ट है ही, दैट विल हेल्प यू decompose it, बट उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है? यू विल हैव टू गिव इट अ like some kind of a decomposition, एक आप टाइम सीरीज दोगे बेसिकली, राइट? तो कैसे करेंगे बताओ? हाउ विल पार्ट 5 वर्क? डिकम्पोज ऑफ व्हाट? टेल मी गाइस, क्या करूं यहाँ पे मैं? टेल मी, अगर मुझे ये एनुअल डिकम्पोजिशन करना है, राइट? सो हाउ शुड आई गो अबाउट डूइंग दिस? अगर मैं अभी डिकम्पोज कर दूंगा तो क्या होगा? इट वुड कैरी आउट अ डेली डिकम्पोजिशन, यस और नो? अगर मुझे एनुअल डिकम्पोजिशन करना है तो हाउ विल आई गो अबाउट दिस? एनीवन बताओ यार, कैसे करोगे? टेल मी. आप अज्यूम करोगे कि ये एनुअली आपका ऑसिलेट हो रहा है, राइट? दैट्स व्हाट वी सॉ इन दिस ग्राफ एज वेल, ठीक है? जब हमने ये ग्राफ बनाया हमने देखा ना, एक एनुअल ऑसिलेशन है. 1 के बाद 2 पे वो पैटर्न है, 2 के बाद 3 पे वो पैटर्न है, 3 के बाद 4 पे वो पैटर्न है, राइट? सो हैव टू लाइक प्रोवाइड इट एन एनुअल फ्रीक्वेंसी फॉर डिकम्पोजिशन, ठीक है? तो उसके लिए क्या करोगे? आप एक टाइम सीरीज बनाओगे जिसमें आप बोलोगे कि इसी टाइम सीरीज में चाहे आप या फिर ओरिजिनल डेटा में आप फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 12 कर लो, मतलब हर 12 टाइम पीरियड के मतलब एवरी ईयर के एक उस पे डिकम्पोजिशन परफॉर्म करो, ठीक है? सो आई गॉट अ डिकम्पोजिशन. यहाँ पे मैं इसको DC1 में एक बार के लिए स्टोर कर दूंगा, राइट? एंड देन आई हैव टू प्लॉट दिस आउट. दे हैव आस्क्ड यू टू प्लॉट द डिकम्पोजिशन. तो ये आपका यहाँ पे आगे ऑब्जर्व ट्रेंड, सीजनैलिटी एंड रैंडम इफेक्ट, ठीक है? सो आई गॉट ऑल द 4 पार्ट्स ऑफ योर decomposed time series, right? और एक और चीज लिखा है आपको, also plot a moving average line on the decomposed graph, ठीक है? तो आपको क्या करना है बताओ तो? आप
आपको डीकम्पोज ग्राफ पे, मतलब ये वाला जो मतलब क्या बोलते हैं, यू विल हैव अ व्हाट डू यू कॉल, डीकम्पोज आपका ग्राफ आपके पास यहाँ पे है, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसका अगर अब आपको मूविंग एवरेज बनाना है, कैसे करोगे? एनी आइडियाज गाइस? तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, केवल ट्रेंड को एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। कैसे करोगे? तो आप DC1 ट्रेंड से केवल ट्रेंड आ जाएगा, बट आपको इसको क्या करना है, आपको इसको प्लॉट करना है अगेंस्ट टाइम, तो ये आ जाएगा। अब अगर इसी का आपको एक मूविंग एवरेज प्लॉट करना है, तो हाउ विल यू डू दैट? एनीवन? टेल मी गाइस, हाउ विल यू डू दिस? तो अगर DC1 ट्रेंड में क्या है आपके पास, देखो आपको टाइम पीरियड वाइज सब कुछ मिला है, राइट? व्हाट विल यू डू? आप इसको एक सीरीज में ले लोगे, राइट? तो अगर मैं अब इसको देखो, अगर मैं अब इसको एज डॉट वेक्टर में डाल दूं, ठीक है, एज डॉट वेक्टर में, आई डोंट हैव टू मैनुअली कैलकुलेट इट, मैंने बस इसका क्या किया है, इसको एक वेक्टर के फॉर्म में ले लिया, इंस्टेड ऑफ हैविंग इट ऑन अ टाइम बेसिस आई टेक इट ऑन अ वेक्टर्ड बेसिस, ठीक है। उससे क्या होगा, आई डोंट नीड टू calculate the moving average manually. All I'll do is I'll use the lines function, I'll overplot it with a different color, right? And I'll get my moving average line. Is it clear to everyone? Any questions यहाँ पे? Tell me guys, this is slightly tricky. ये सबको समझ में आया क्या? सर हमने एज डॉट वेक्टर उसे चेंज क्यों किया एज वेक्टर के वाइज? देखो आपको क्या प्लॉट करना था इसमें, इस ग्राफ पे आपको एक टाइम सीरीज प्लॉट करना था, आपने डीकम्पोज ग्राफ प्लॉट कर दिया पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, मूविंग एवरेज लाइन प्लॉट करना था ऑन अ डीकम्पोज ग्राफ, राइट? तो आपका जो बेसिकली एक ट्रेंड लाइन है वो एक तरीके से डीकम्पोज ग्राफ हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। आपको इसी का मूविंग एवरेज प्लॉट करना है, राइट? यस और नो? देखो अब जैसे ही आपने एज डॉट वेक्टर किया, व्हाट हैपेंड टू योर एंटायर थिंग, इफ यू स्टार्ट नोटिसिंग इट, यहाँ पे पहले वैल्यूज क्या है, लेट्स जस्ट लुक एट द फर्स्ट फ्यू वैल्यूज ऑफ एज डॉट वेक्टर, 356, 353, 350, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, 356, 353, 350, राइट? वही वैल्यूज है, हाँ कि ना? यस। वैल्यूज आर नॉट डिफरेंट, ठीक है, बट व्हाट हैज चेंज्ड, ठीक है। नाउ इट नो लॉन्गर रिकॉग्नाइजेज इट एज अ टाइम सीरीज। जैसे ही आपने एज डॉट वेक्टर किया, वो जो टाइम वाला कंपोनेंट है वो हट गया आपका, यस। राइट? लेट्स हैव अ लुक एट एज डॉट वेक्टर, योर टाइम वाला टाइम वाला कंपोनेंट हट गया, देखो, राइट? यू गॉट अ सिंपल वेक्टर जिसको आप ओवरप्लॉट कर सकते हो, यस और नो? यस। Right? So that helps you to remove the time series component of it and just get a simple trend line. ठीक है? ओके सर। Got it? चलो, यस। सर हाँ हाँ इसमें जो हमने डिकम्पोज करने से पहले फ्रीक्वेंसी 12 किया, हाँ, तो मतलब हमको ईयरली का है, तो फिर 12 क्यों किया? मतलब अगर मंथली पूछते तो फिर क्या करते? नहीं, ईयरली है इसलिए 12 किया क्योंकि लाइक आर एक ईयर में 12 महीने होते हैं, ऐसे समझ सकते हो, राइट? एंड आप एक तरीके से ट्रेंड्स आर चेंजिंग बेस्ड ऑन मंथ्स, राइट? जब आप ट्रेंड्स को डेली इफेक्ट के बेसिस पे अगर स्टडी करने की कोशिश करोगे, तब तो वो बहुत ही ज्यादा लाइक वेरिड बनेगा ना, है ना? तब आप Yes. लाइक सीजनैलिटी इंडेक्स को आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। यूजुअली क्या होता है आपका, लाइक मेनली टेम्परेचर आप मंथ बाय मंथ देखोगे या क्वार्टर बाय क्वार्टर देखोगे। तो इफ यू हैव अ गुड इनफ जस्टिफिकेशन की क्वार्टर बाय क्वार्टर भी चेंज होता है, दे कैन यूज फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 4 एज वेल। बट यहाँ पे अगर आप ये कॉम्पोजिशन देखो, यू सी दैट इट्स लाइक इट्स नॉट अ गैप डाउन, राइट? आपका ऑलमोस्ट 6 महीने में तो चेंज हुआ ही है, इस पार्ट पे भी चेंज है, इस पार्ट पे भी चेंज है, राइट? सो एवरी मंथ यू आर सीइंग सम अप एंड डाउन, राइट? तो इसलिए हमने इसको मंथली दे दिया, ठीक है? ओके सर।
आप चाहो तो इसको एनुअल भी दे सकते हो, यू विल नॉट गेट द सेम आंसर ऑफ कोर्स, राइट, बट एक सेकंड, डिकम्पोज हुआ नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी लाइक लेस देन 2 पीरियड पे आ गए अपने, ठीक है। सो वी कांट यूज फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 ईयर, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 यूज करने से क्या हो रहा है, आप मंथली पे रह रहे हो, सो यू हैव अ गुड इनफ फ्रीक्वेंसी एज वेल, एंड आप उसको डिकम्पोज भी कर पा रहे हो, ठीक है। डज इट मेक सेंस टू एवरीवन? यस सर। चलो, पार्ट 6 में आता है, क्या लिखा हुआ है, ACF and PACF of the time series and comment on the stationarity of time series, also paste the graphs, right? So ACF PACF plot करना तो अपने को आता है, all we need to do is use the ACF and PACF function, right? टाइम सीरीज अपने पास ओरिजिनल है ही, कहाँ पे है अपना टाइम सीरीज, आई थिंक TS_D में स्टोर्ड है, राइट? सो दिस इज वन एंड PACF इज द अदर वन, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो अपने यूजुअली करते थे, अपने लैग को इंक्रीज कर देते थे, बट यहाँ पे आई डोंट थिंक लैग को इंक्रीज करना विल मेक एनी सेंस, राइट? क्योंकि योर time periods are quite small in nature, you are measuring a daily data, तो 0.02 में भी एक तरीके से एक टाइम पीरियड आ गया देखा जाए तो, ठीक है। तो नाउ इफ आई थिंक अबाउट इट, ACF PACF के बारे में कैसे कमेंट करोगे बताओ? टेल मी गाइस, ACF क्या क्विकली डीके कर रहा है? टेल मी, हैज ACF decayed quickly? ये तो हम PACF देख रहे हैं, ACF has not decayed quickly, right? It's largely stays constant for this long time. तो क्या आपको स्टेशनरी लग रहा है आपका टाइम सीरीज? Yes or no? Tell me guys, does it look stationary or not? It does not, right? तो अगर स्टेशनरी नहीं लग रहा है तो अपने क्या करते हैं, डिफरेंसिंग परफॉर्म करते हैं, राइट? सो वही नेक्स्ट पार्ट में देखो, if the time series is not stationary, then apply appropriate transformations to make it stationary. So part 7 में what will we do? We do a single differencing for time being, ठीक है। तो for example आप TSD with diff को क्या करोगे, you will do a single differencing of your time series D. I've got a differenced time series, ठीक है। अब मुझे बेसिकली ये भी चेक करना है कि ये डिफरेंस मतलब डिमांड में हमने कर दिया है, तो अब अपने क्या करेंगे, इफ से देन ट्रांसफॉर्मेशन टू मेक इट से प्लॉट द स्टेशन रेसिडुअल्स ऑफ द टाइम सीरीज ACF एंड PACF ऑफ द रेसिडुअल्स एंड कमेंट ऑन द स्टेशनैरिटी ऑफ द टाइम सीरीज, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, अपने डिफरेंस टाइम सीरीज को प्लॉट करूंगा, राइट, उसका ACF और PACF निकालूंगा, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक। सो पार्ट 8 में प्लॉट ऑफ TST ऑफ डिफरेंस, राइट। सो यू कैन सी कि आपका जो स्टेशन मतलब एक लाइक इंक्रीजिंग वाला जो एलिमेंट उनको लग रहा था स्टेशनैरिटी वाला, वो नहीं लग रहा है, ऑलमोस्ट मीन रिमेन्स द सेम, राइट। एंड ACF ऑफ TSG डिफरेंस, yeah, it decays quickly to 0, right? After almost the first time period factor, it has decayed, right? And similarly with the PACF thing, also oscillate वाला चीज भी लग नहीं रहा, इट्स बट अपने को तो मेन में स्टेशनैरिटी पे करना था, एंड दैट लुक्स गुड, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, फिट एन अरीमा मॉडल फॉर द डेटा एंड हेंस आइडेंटिफाई द पैरामीटर्स PDQ, मेंशन व्हाट टू द पैरामीटर्स स्पेसिफाई। तो अरीमा में अपना PDQ अपने को तीनों अब डिफरेंस मॉडल में सर्व करना है, ठीक है। कैसे करोगे बताओ, टेल मी। जब अपने को पैरामीटर्स अपने चाहते हैं कि R अपने लिए खोज के दे, तो कौन सा फंक्शन यूज करते हो बताओ? ये हमने किया हुआ है, टेल मी गाइस, नॉट अ न्यू थिंग। ऑटो अरीमा करके, राइट, ऑटो अरीमा करोगे, राइट। कौन से इसमें अपने पैकेज, आई हैव जस्ट फॉरगॉटन द पैकेज, क्या नाम था पैकेज का, नो 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 नो, दिस वाज अरीमा करके ही नाम था, इसमें होना चाहिए, फ्रैक्टिस में नहीं, दिस इज नॉट फॉर दैट, आई एम नॉट गेटिंग दिस ऑटो डॉट अरीमा हियर। डू यू गाइस रिमेम्बर कौन से पैकेज में है ये? टेल मी गाइस। ये भी फोरकास्ट में है। फोरकास्ट में है क्या? हाँ, फोरकास्ट में ही होगा, राइट।
So auto.arima. Now most probably you should get it. Take a minute to maybe install it. Just give it a minute. या तो forecast में होगा देखो, या तो T series में भी हो सकता है. Now I remember the name of the thing. T series, yes. T series में जहाँ तक है. Let's see कहाँ पे इसमें आया क्या. इसमें ही आ गया, but मतलब यूजुअली आपके या तो टी सीरीज में है या तो इसमें, ठीक है. सो गेट वन ऑफ दोज फंक्शंस में, लाइक बोथ द पैकेजेस इंस्टॉल्ड. आपको क्या देना है, बस आपका टीएसटी डिफरेंस देना है, राइट. दैट्स एनफ. आपके लिए वो पीडीक्यू सब कुछ आइडेंटिफाई कर देगा, राइट. नाउ यहाँ पे दिख रहा है कि 102 है, राइट, बिकॉज AR1 MA2 है. बट व्हाट विल डू इज विल स्टोर इट एंड AR अरीमा 1 मॉडल, ठीक है. तो and then we'll take a summary of that model. तो वहां पे अपने को अच्छे से सब कुछ वो दिखा देगा. Like it will give you basically the same information, but again it will give you other things as well. For example, AIC क्या है, log likelihood क्या है, coefficient सारे मिल गए, standard मिल गया, 102 मिल गया with zero mean and all of those things, right? तो आपका क्या है, अरीमा with an AR of 1 0 times differencing, क्योंकि differencing हमने कर चुका है. MA जो 2 के लिए, ठीक है. तो AR क्या होता है, जब आप xt इक्वल्स xt माइनस 1 पे डिपेंड होता है, राइट. सो आप क्या बोल रहे हो, एक पिछले एक वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है आपकी टाइम सीरीज की वैल्यू डायरेक्टली, और मूविंग एवरेज ऑफ द पास्ट 2 वैल्यूज, ठीक है. और उसमें हमेशा ET होता है, सो एक व्हाइट नॉइज एरर टर्म भी ऐड होता है. फिर क्या लिखा हुआ है, परफॉर्म मॉडल डायग्नोस्टिक्स बाय एनालाइजिंग द रेसिडुअल्स एंड पेस्ट अ ग्राफ, कमेंट ऑन द डायग्नोस्टिक्स, ठीक है. अच्छा, जब अपने मॉडल डायग्नोस्टिक्स परफॉर्म करते हैं तो यूजुअली व्हाट टेस्ट डू बी परफॉर्म, वी परफॉर्म द चंक बॉक्स टेस्ट, राइट. तो आप वो परफॉर्म कर लो, एंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट इज टू यूज दिस चेक रेसिडुअल्स वाला फंक्शन इन दिस केस, ठीक है. तो ऑल यू नीड टू डू इज चेक रेसिडुअल्स ऑफ योर मॉडल. सो अरीमा 1 करोगे आप यहाँ पे, right. It does a couple of things for you, right. It performs chunk box test plus it gives you the model diagnostics. मतलब आपको रेसिडुअल्स दे देगा, ACS दे देगा उनका, और आपको रेसिडुअल्स का हिस्टोग्राम भी बना के दे देगा, राइट. तो आपको मेन में क्या चेक करना होता है हमेशा, रेसिडुअल्स आपका कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट जीरो के आगे पीछे है, राइट. दैट्स द मेन थिंग दैट वी ट्राई टू टेस्ट, राइट. एंड दैट इज द केस हियर एज वेल. देखो, do our residuals look like they follow a pattern? Probably not. They're quite random in nature, and zero के आसपास है, right. ACS भी it has gone down to zero, बीच में एक है, बट कहीं भी सिग्निफिकेंट ज्यादा नहीं है, एक या दो बीच में एक्सीड किए हैं, बट मोस्टली मॉडल सीम्स लाइक अ गुड फिट, ठीक है. फिर क्या लिखा है, forecast एनर्जी देखो, एनर्जी कंजम्पशन फॉर द नेक्स्ट 30 days यूजिंग द फिटेड अरीमा मॉडल एंड पेस्ट द आंसर्स, ठीक है. तो आपको क्या करना है, आपको अरीमा मॉडल अपना यूज करना है और प्रिडिक्ट में डाल देना है, राइट. सो ऑल आई नीड टू डू इज इन द लास्ट पार्ट, part 11 में I'll use the predict function, right. I'll put my arima model, right, and I'll give my n dot ahead as equals 30, ठीक है. देखो सब लोग, यहाँ पे जो आपका डॉलर प्रेड है, इससे आपको क्या मिल गया आपका, tell me guys, have you got the energy consumption for the next 30 days कि क्या मिला ये बताओ. Is this the final answer? इसमें क्या करोगे जिससे फाइनल आंसर मिलेगा, बताओ. Sorry, tell me guys, what do you do here to get your final answer? This is not your final answer. इसको डॉलर प्रेड करोगे, उसके बाद क्या करोगे to get your final answer? ये क्या है, डिफरेंस मॉडल का है ना. अरीमा 1 किसका है, डिफरेंस मॉडल का, डिमांड का डिफरेंस मॉडल है. तो आपको क्या करना पड़ेगा टू गेट योर फाइनल डिमांड, टेल मी गाइस. आप क्यूमुलेटिव सम लोगे है ना, यू विल डू अ क्यूमुलेटिव सम ऑफ दिस प्री वन, राइट, एंड दैट यू विल ऐड टू योर लास्ट वैल्यू ऑफ योर डिमांड, द ओरिजिनल डिमांड, राइट. तब आपको जाके फाइनल वो मिलेगा. तो फाइनल अपना कहाँ पे था, फॉर एग्जांपल अपना डेटा के डिमांड के लास्ट वाला देना है मुझे, तो सिटी डिमांड
का डेटा का डिमांड का लास्ट आई थिंक 1095 ऑब्जर्वेशंस है. तो ऑल आई नीड टू डू इज दिस. तो ये मेरे नेक्स्ट 30 दिन के प्रिडिक्शंस है कि क्या होगा मेरा डिमांड फॉर एनर्जी कंजम्पशन. सॉरी. डज दिस मेक सेंस टू एवरीवन? सबको समझ में आया? बताओ यार, कोई भी दिक्कत इसमें? सबको ये समझ में आया कि हमने क्यूमुलेटिव सम करके लास्ट डिमांड से किया, क्योंकि हमने जो मॉडल फिट किया वो डिफरेंस पे किया. तो हमारे जो प्रेडिक्शंस है वो भी डिफरेंस्ड है ना. तो हमें क्या करना है, हमें तो एक्चुअल कंजम्पशन निकालना है. तो हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव सम लेंगे जिससे वो डिफरेंसेस चेंजेस मतलब चेंजेस फ्रॉम द लास्ट वैल्यू पे आ जाए और फिर लास्ट वैल्यू से ऐड कर देंगे. मेक सेंस गाइस? एनी क्वेश्चंस? आई थिंक वी टुक more than close to 2 hours, and 2 hours when I had already had a look at the solutions pehle, so I knew the intricacies of it. So no doubt question paper was on the difficult side, mainly because of question number 3. thoda question 1 and 2 was on the easier side, but 3 was more trickier than usual. ठीक है, क्योंकि कॉपुलास में not have seen those functions, इसकी वजह से थोड़ा ज्यादा ट्रिकी हो गया. ठीक है, बताओ टाइम सीरीज वाले क्वेश्चन में किसी को कोई भी दिक्कत? एनी क्वेश्चंस गाइस? No, sir. नो? कूल. सर पार्ट 8 में एक हाँ हाँ प्रश्न, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि रेसिड्यूल्स करना है एसीएफ एंड पीएसीएफ का. हमने रेसिड्यूल्स नहीं किया. एक मिनट रुको, लेट मी हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. Plot the residuals of the time series, ACF and the PACF of the residuals, right? यहाँ पे हमें ACF of the PCF of the residuals करना है. आप यही कह रहे हो ना? तो राइट, ट्रू. तो आपको रेसिडुअल्स एक्सट्रैक्ट कर से भी कर सकते हो, राइट? तो बट हमने यहाँ पे अभी तक रेसिडुअल्स निकाले कहाँ हैं? आई एम जस्ट थिंकिंग वी डोंट हैव द रेसिडुअल्स येट बिकॉज यू हैव नॉट फिटेड अ मॉडल, राइट? अभी तो आपके पास बस सिंपली डिफरेंस टाइम सीरीज है ना. पार्ट 8 में उन्होंने अभी तक आपको रेसिडुअल्स निकालने को कहा है यार. कमेंट ऑन द स्टेशनैरिटी ऑफ टाइम सीरीज, आई थिंक है ना इनका ये टाइप. This just wanted you to plot the ACF and the PACF of the time series itself and the time series as well. या तो ये इसी को रेसिडुअल्स बोल रहे हैं, डिफरेंस टाइम सीरीज को ये रेसिडुअल्स बोल रहे हैं. मतलब बिकॉज द टाइम सीरीज हैज बीन डिफरेंस्ड ना, तो वो उसको रेसिडुअल्स बोल रहे हैं. ठीक है, क्योंकि रेसिडुअल्स यूजुअली कब होगा, जब आपने कोई मॉडल फिट कर दिया है ना, तभी तो आप रेसिडुअल्स निकाल पाओगे, है ना? यस राइट. सो लाइक ये इस पॉइंट पे रेसिडुअल्स बोलने का मतलब क्लियर नहीं है, तो आई थिंक डायरेक्टली टाइम सीरीज का ही निकालना पड़ेगा. ओके ओके गॉट इट. कूल. एनीथिंग एल्स गाइस? सर नवंबर 2024 के पेपर में ना कल एक हम्म. प्लॉट था, जीजी सर्च प्लॉट करते हैं. राइट. वो मुझे समझ नहीं आया कि हम वो क्यों यूज करते हैं, लाइक सर्वाइवल डेटा को प्लॉट करने के लिए. जीजी सर्व प्लॉट बोला ना आपने. देखो, सो जीजी प्लॉट 2 इज अ लाइक बीस्ट ऑन इट्स ओन. ठीक है, तो जीजी प्लॉट 2 पैकेज में वो आता है जिसमें सर्वाइवल कर्व्स को प्लॉट करने के लिए मल्टीपल आपको मतलब लाइक फैसिलिटीज मिल जाते हैं एक तरीके से. यू हैव अ सब लाइक जब आपने सर्व फिट फंक्शन यूज कर लिया होता है, आप डायरेक्टली उसमें मतलब जो फिटेड मॉडल है उसको अंडर डाल सकते हो, और उसमें फिर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल, पी वैल्यू, मतलब और भी चीजें ऑन ऑफ करने की बहुत फंक्शनैलिटी रहती है, राइट? सो बेसिकली अपने जो सर्वाइवल फंक्शन विद टाइम विद कॉन्फिडेंस इंटरवल्स जो प्लॉट करते थे वो इजीली हो जाता है. बट अगेन इफ यू are not comfortable with it, आप डायरेक्टली प्लॉट फंक्शन भी यूज कर सकते हो, एंड दैट विल गिव यू द सिमिलर रिजल्ट एज वेल. ओके सर. ठीक है, हाँ. एनीथिंग एल्स गाइस? ऑल्सो सर एक चीज और कि नवंबर 2024 में वो जो क्वेश्चन था ना जिसमें हमें बोला था कि डेटा के सारे फैक्ट मतलब जो वेरिएबल्स है उन्हें फैक्टर में कन्वर्ट करना था एज डॉट फैक्टर के लिए. तो उन्होंने इंडिविजुअली सारे मतलब फैक्ट मतलब वेरिएबल्स को कन्वर्ट किया था एज डॉट फैक्टर में. और तो कितने थे? सॉरी सर, कितने वेरिएबल्स थे?
आई थिंक 9 और 10 में भी. ओके ठीक है. हाँ मुझे जितना तक याद है वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह, चेस्ट पेन वगैरह का क्वेश्चन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ ठीक है, फिर बोलो. हाँ, तो इसमें मतलब एक और दूसरा क्वेश्चन दूसरे पेपर में था जिसमें ना रीड डॉट टेबल और रीड डॉट सीएसवी में हमारा एक मतलब पार्ट होता है जिसमें स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स अगर ट्रू कर दे तो वो इवेंचुअली वो सारे को कन्वर्ट कर देता है एज फैक्टर्स में. तो हम वो उसमें बट वो डेटा फ्रेम रीड करने के टाइम पे करना होगा ना. हाँ राइट. तो आप कर सकते हो, बट द ओनली प्रॉब्लम देयर इज देयर मस्ट बी सम लाइक कॉलम देयर जो नेसेसरीली स्ट्रिंग ना हो और फिर भी फैक्टर में कन्वर्ट करना हो. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 किसी में आया है, ठीक है, राइट. तो स्ट्रिंग नहीं है, वो तो न्यूमेरिक है ना. यस. बट उसको भी फैक्टर में कन्वर्ट करना है अपने को, राइट. तो इसलिए वो उन्होंने वैसा नहीं किया होगा, दैट आई एम गेसिंग. या फिर कोई उल्टा तो होना नहीं चाहिए, बट फिर भी इन एनी केस कहीं हो तो जस्ट दे हैव इंडिविजुअली they would have individually considered every variable और उस हिसाब से कन्वर्ट किया होगा. ठीक है. Cool. चलो, in that case I'll close the class for today, guys. Thank you everyone. Bye bye. Let's meet next week. Thank you. Thank you.